नेक्स्ट हमारा पैनल डिस्कशन होने वाला है वो है टर्बोचार्ज योर D2C ग्रोथ एज सस्टेनेबल ब्रांड एंड पोस्ट परचेज जर्नी फ्रॉम जयपुर टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। और इसके लिए मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर आकाश सिन्हा के लिए, को-फाउंडर अक्टूबर जयपुर से। आप रिक्वेस्ट यू सर प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पे आस्था कट्टा, को-फाउंडर शायल से, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज मुदित गोयल, फाउंडर रंग रियल। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज Manushree Khandelwal, founder Femora. Next, I would like to invite on stage Nitish Agarwal, founder of Living Rooms and strategic partner at Claycraft. Next, I would like to invite Viral Tiwari, co-founder Nuska Kitchen. Next, I will request Tejas Shah, CT Winery. और इस राउंड को, इस सेशन को यहाँ पे मॉडरेट करेंगे मिस्टर अनुज दलाल, फाउंडर जी स्टार्ट टेक्नोलॉजीज से। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। We have a new panel discussion over here, and thanks to the schedule getting late, I got a chance to sit with each and everyone and got a very good insights about their businesses. I believe we can make it more interactive, and I would have better discussions with them. So, to start with, I'm not investing more time over here. I would like to introduce each individual by themselves, so everyone get idea about what they are doing and where they are right now. So I'm starting with Tejas. मेरा नाम तेजस शाह है। मैं CTO and co-founder of Binary. We are the e-commerce enabler, and we practically make a website, social media, e-commerce, and everything for a merchant like you. Hi, I am Akash and I am a co-founder of October Jaipur. We are into apparels and leather goods, and we are majorly a D2C brand. Yeah, I am Manushree, founder of Femora. So we are into organizing kitchen beautifully, and under the kitchen we are saying. Hi everyone, I'm Astha. I am founder and creator Head and Shine. It's a pure super jewelry brand and artistic super jewelry brand. And it's a social media driven brand having over 350k Instagram followers. Hello everyone, my name is Viral Tiwari. I'm the co-founder of Nuska, and we deal in pregnancy, post-pregnancy and general women health products. So we are an omni-channel platform. We sell online through our website and e-commerce platform, as well as through offline stores. Hi everyone, I'm Nitish Agarwal, founder of Living Rooms and strategic partner at Claycraft. We are into the home and kitchen category, selling majorly home furnishing items and crockery items. And we are present on all the major websites as well as on our website. Hi everyone, my name is Muditt Goyal and I'm the founder of Rugby. We are into apparel segment as well, and we are actually the manufacturers as well. We started our brand last year in April 2023. Yeah, thank you everyone. And I guess we have a different set of categories. Only two are from fashion. Then we have a kitchen accessories, we have a jewelry who are selling online, we have a pregnancy products as well, and so I guess it's going to be more exciting. To start with, I believe I understood that he is the first generation business owner hai, and majority has started a D2C online. So I wanted to learn about the journey. We need 5 to 10 lines from you. How did you start it? When did you start it? And what was your one of the most important initial challenge in your business that you overcome during the initial time? Yeah. So we started a run reel in April 23, and we were into manufacturing. B2B करते थे पहले से, wholesalers and distributors को देते थे.
हमारा स्टार्ट हुआ कि शार्क टैंक देख के। हमने जब शार्क टैंक देखा तो हमें पता चला कि लोगों को सच में रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी बना सकते हैं कुछ, तो उसी से थोड़ा सा मोटिवेट होकर हमने स्टार्ट किया था और आज अराउंड 5 करोड़ के आसपास हम टर्नओवर कर देंगे इस साल। I started my online journey in year 2016 when my friend Deepak Agarwal, the director of Playcraft, he was looking forward to get his presence on the e-commerce platforms. वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे and उनको एक चैनल पार्टनर चाहिए था उसको एक्सपैंड करने के लिए। So that's when I came into the picture and we started this business. Initial challenges were कि हमारा फ्रेजाइल कैटेगरी था, ये कैटेगरी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की ऑनलाइन एंड उसको कैसे मैनेज करें, ब्रेकेजेस को कैसे मैनेज करें, रिटर्न्स क्या रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मालूम। ये सारे चैलेंजेस हैं जो विद टाइम एंड एक्सपीरियंस ही कोई टीम कर सकता है। देयर इज नो होल बुक कि डे 1 से आपको कैलकुलेशन हाथ में आ जाएगी। आपका खुद का एक्सपीरियंस बोलेगा 3 months 6 months किसी को 1 साल लग सकता है टू नो कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कॉस्ट एसोसिएटेड क्या है। So this was our journey, patience रखा एंड धीरे धीरे स्केल अप करते गए हम लोग। हमें भी कॉन्फिडेंस आया तो हमने भी बिल्ड अप किया, हमने भी कैटलॉग साइज बढ़ाया। So that's how things have grown and today we are one of the leading brands on the online space, just like we are the leaders in offline space. So we started it. Actually, the company was started by my mom. It was done in around 2020. And initially, we were actually originally were not an e-commerce company to begin with. हमने इसे start किया था just as a solution for pregnancy and post-pregnancy depression, जिसको हम maybe cater to the original audience of Jaipur and then start growing to different cities very traditionally. But over time, I believe there was one big incident that we got a feature on Shark Tank in season 1, and that gave us the really good boost of it. That practically made us the company that we are today. Other than that, if we talk about challenges, I believe we have one big challenge of segmentation where we cater to a very niche audience per se. So pregnancy का एक जो पूरा phase होता है, that is basically 9 months of gestation cycle and then 9 months after that. So 18 months and that too once or twice in your lifetime. So acquiring new customers, getting them onboarded and then graduating them and then acquiring new ones again. So that was basically the biggest challenge that we had, and at least so far we have somewhat cracked the end of it. Hi everyone. So we had started Shine back in 2018, and जब हमने start किया था, so I had adopted pure silver as a product, and everybody was like, pure silver कौन खरीदेगा online? So selling this particular segment online is a big challenge. In the initial days, I had started with an Instagram store. And that is why I always call the brand as a social media driven. So I just experimented it कि let's start an Instagram store. तब बहुत ज़्यादा boom पे था, trend था, अब तो there's a need on when it comes to social media stores. तब it had just started, so maybe I had that advantage of that early mover advantage. So getting that kind of I since first month I would say एक तो the collection which I had curated. And the place we are in, it's यहाँ पे we have that category of pure silver, right? So I got that traction and I had it in head in first 4-5 months only that we can go big with this. So we strategized that phase and settled down in Jaipur, started working over it and overcoming that challenge to sell precious pure silver. We have cracked it one with the statement designs. I would always say अगर आप अपने product को market से different बना सकते हो तो आप अपने brand को वैसे ही flip करो। तो अगर आपके पास option है तो अपने product में एक differentiating factor डालो कि ज़्यादा comparisons तो वही ना पाए।
कंपेयर तो ऐसे करते हैं ना, ऑन अ क्लिक. So we can do that. Second, what we as a brand have also done. Second, when it comes to precious metal, showcasing that product online is again a challenge, because ये it has been in the thought, in the traditional thought, आज भी वो gap bridge करना बहुत difficult है. That people are like, we'll buy silver, gold, diamond तो offline ही ना, who is going online and buying it. So to break that challenge, differentiating product plus showcasing that in in a way that it is getting that kind of traction on the in the online space. Abhi last session mein I was I heard that social media traction, having that kind of views on reels. So I would like to mention here, we have a lot of videos which have hit millions of views on Instagram. तो पहला upliftment तो वहीं आ जाता है, वो traction तो वहीं आता है, right? So that is one more challenge which we have overcome. And 3, आप customer service ऐसी दो कि precious metal की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप customer service ऐसी दो कि people gain that kind of trust, people have that kind of transparency. I would again point out in the last session there was a term called social proofing जो point out हुआ था. ये बहुत important है. If you work on your Google reviews, if your reviews say it, if your social media handles say it, so Shine has always focused on that, and this tells about the brand, right? You Google Shine and you will see 1600 reviews on Google, maintaining a 4.9 rating. So वहाँ पे ही people have it, okay, we can build that kind of trust. So there again we have overcome this challenge, and people are ready to invest a 5K or a 10K, or we hold an average order value of about 5,000. तो 5,000 और 10,000 खर्चने में लोगों को लोड नहीं आता. So this kind of industry, this kind of product can also be cracked in the online space, thanks to a lot of resources which are available here. Thanks to, अगर आप खुद की ब्रांड नहीं कर पा रहे हो तो thanks to the marketplaces, आप खुद का वेबसाइट पे भी फोकस करो. Marketplaces are connecting you to the right kind of audience there, so they are a blessing. They are indeed a blessing in this world. So we at Shine now, we are definitely now that we have focused on our website, we are definitely working on the marketplaces. So yes, there are a number of challenges which we have been facing since day one, and we are doing it today. It's just that we're trying to elevate the brand in a positive way, touching every single point throughout the market. Thank you. So I'm Manushree, founder of Emora. So मेरी 12th standard खत्म हुई थी 2014 में, and that's where Flipkart आ चुका था, Snapdeal हाइक पे था, Jabong का एक प्लेटफॉर्म था. These were the platform, and it was more like काम करना है, कमाना है, अपना खर्चा निकलना चाहिए दिन का, बाकी चीजें बात की बात. मॉडल बड़ा सिंपल था. आस पड़ोस गए, भैया जिसके पास जो टेक्स्ट स्टॉक पड़ा है सब दे दो. ना कोई पैसे मांगता था, ना कोई माल पूछता था. ऐसे कर करके सो मैंने करीबन 12 कैटेगरीज में काम किया. ज्वेलरी, होम डेकोर, होम फर्निशिंग, सॉफ्ट अप्लायंसेस, लार्ज अप्लायंसेस, हेल्थ एंड पर्सनल केयर. Ended up becoming brand partners for 20 to 30 pan-India brands such as Joy, Himalaya, Mary Gogo Pants, then in kitchenware, Cello, Brooklyn, Laopala, and so on and so forth. ऐसे कर करके बिजनेस किया. बिजनेस कर भी रहे थे, लेकिन साथ में मोदी जी भी कुछ ज्यादा ही साथ थे. वैट, जीएसटी हो गया, डिमोनेटाइजेशन आ गया, चीजें बदलती गई. Then 2019 में रियलाइज किया कि यार ये जो ट्रेडिंग का बिजनेस है, कर तो रहे, धंधा भी बन रहा है और चीजें चल रही हैं, बट मजा नहीं आ रहा, क्योंकि क्या होता है कि आप फ्यूचर नहीं देख पाते. ट्रेडिंग में आप जो सप्लाई साइड मिल रहा है उसको आप बाइंग साइड में रखते हो, इररिस्पेक्टिव आपको लगता है कि वो सेंस बनाएगी नहीं बनाएगी. इनिशियली एक एक्यूमेंट होता है, हाँ बेचते तो फिर सेकंड एक्यूमेंट होता है, प्राइस डाल दो यार, अपने आप बिकेगा. वो किया. देन 2019 आई स्क्रैप्ड एवरीथिंग, किया गया, कुछ नहीं करता. किचन में एक मेरी बकेट में एक सेगमेंट था जो मुझे एक्साइट करता था. क्यों करता था? सबसे स्लो था, चीजें बदली नहीं थी. हम नॉर्मल किचन से मॉड्यूलर किचन में जा चुके थे.
एक नॉर्मल बेडरूम से एक बहुत ही स्मार्ट लाइटिंग वाला बेडरूम और नई नई चीजें आ चुकी थी. सो दैट्स वेयर ये एक ऐसी कैटेगरी थी जहाँ पे सारे लेगेसी ब्रांड थे 15 साल पुराने. कंज्यूमर की होल्डिंग ऐसी थी कि यार मेरे पास ऑप्शन ही नहीं तो मैं क्या लूं. अगर मैं यहाँ पे किसी से पूछूंगा कि आप कोई भी ऐसे 5 हाउसहोल्ड ब्रांड्स के नाम बताओ जो पिछले 4 साल में बर्थ किए हुए. सो मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ पे 5 ब्रांड्स के नाम भी बता पाए. सो ये वैलिडेशन होगी कि हाँ बॉस जगह तो हो सकती है, धंधा बड़ा, ऑलरेडी ये ब्रांड्स मोर देन 500 करोड़ 1000 करोड़ ब्रांड्स बना चुके हैं. एंड दैट्स हाउ फिमोरा स्टार्टेड. प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ा सिंपल था. घर मतलब हम इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, घर छोटे होते जा रहे हैं, किचन और छोटी होती जा रही है, बट खाने की लाइफस्टाइल हमारी बदलती जा रही है. एंड दैट्स वेयर वी केम अप किया भैया किचन को ऑर्गेनाइज करो और उसको ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करो. दैट्स व्हाट मिलेनियल्स नीडेड एट दैट टाइम. With this thought, we started, and there were trends which were coming in place. जैसे प्लास्टिक बाहर जा रहा था किचन से, एल्यूमिनियम बाहर जा रहा था. We took the advantage of trend, and then problem solving थोड़े बहुत products बनाए, pitch करे, marketplace से proofing मिलती गई, and this is how we have gained and we have moved ahead with the trend. Hi, I'm Akash. I'm the co-founder of October Jaipur. So we started in very early 2015, and we started with the vision of making a brand. कि हम एक बहुत बड़ा brand बनाएंगे, एक niche brand बनाएंगे. But in 2015 itself, we realized that at that time, I think Instagram was not very active in India. So we made a page on Facebook, and we were doing some sales here and there. But I come from MP and living in Jaipur. So मेरे अपने खर्चे निकालने के लिए it was not enough, just to retail. So we somehow realized that B2B is a great market. So we got into B2B. So B2B still is a very big part of us. We have at least 100 plus artisans working with us. So we export to US and Europe. We make leather goods. But I think we started our retail section in 2019, right after COVID. Sorry, 2020, right after COVID, March. And since then, we have been catering to men and women apparel. And the problems which we face, sales can still be sorted with performance marketing, maybe content generation, but the major problem which we face on Instagram and Facebook or this internet world is brand building. Because I feel it might take time, but if you're able to crack brand building, it's a long-term game. Sales, as all of us we discuss, is the most important part, but this is my understanding that it can still be solved with a little bit of marketing, good content, good customer service, or definitely a अच्छा product. But brand building is my issue which I'm trying to solve, and in 2024 my aim is to create a brand कि at least मुझे लोग पहचाने, इस brand को लोग जाने, और किस चीज़ के लिए जाने कि they make different apparel. They are very design led, but the prices are not extremely high. So our average order value is around 5,500. I will not say it's very cheap, but it's not very highly priced. It's mass premium, and where I feel Indian middle class is moving towards mass premium products. So yeah. This is what we do. Thank you. Thank you, Akash. Tejas, I have a different question for you since you are from the different category. So here I can see there are so many people जिनको अपनी website बनानी है, e-commerce में जाना है. So what are the 3 to 5 checkpoints for the initial day that you would like to say about the technology, choosing the right technology or building a right e-commerce website for their own business? तो भाई ड्रेस है ना, मैंने सब बड़ी ब्रांड से लेके छोटी ब्रांड से काम किया. जैसे जब आप लोग ने नाम सुना होगा आपके छाप का बुनाई जब started with a very small amount, like now they have been more than 60-70 years. I think there are the 3.4 which I get that people are not taking seriously. First major part, they don't make SKU numbers, and I think people don't take seriously to make a SKU numbers of their product. I think if they want to grow on a bigger scale, they should have a proper SKU numbering system. Because when you do return, refund, or everything, the SKU number is an actual way to understand that this product came to you and this product you are going to. Second part, people don't take serious about their photograph. People don't understand the importance of photograph. But I think we are talking right now, if they overall because you made added value in their photograph. Because customer
वही देखता है जो आप दिखा रहे हो, वो फोटो देख के ही आगे बढ़ने वाला है। आप सोशल मीडिया में कितना भी डालोगे सब बोले, पर आप जब अपनी वेबसाइट के ऊपर लाओगे और वो फोटो बराबर नहीं दिख रहा है, डेटा बराबर पढ़ नहीं पा रहा है, इवन आप प्लेटफॉर्म पे भी जब ऊपर फ्लिपकार्ट पे डालोगे, अमेज़न पे डालोगे, वहां पे आप जो डेटा डालते हो, अगर आप अपनी खुद की बिहेवियर देखोगे ना, तो आप जब जाके एमआई का प्रोडक्ट ले लेते हो तो हर चीज का छोटा छोटा डिटेल डालता है। सैमसंग मुझे ज्यादा देते हैं पर हम एमआई देते हैं, बिकॉज एमआई हर एक चीज की डिटेल डालता है, इस चीज के तो हर प्रोडक्ट की जितनी आप डिटेल डालोगे, जो आई थिंक इफ यू सी फॉरेन ब्रांड और इंडियन ब्रांड में जो मुझे डिफरेंस दिखता है जब मैं बढ़ता हूं, ये वर्ड होना डिटेलिंग, और जितना डिटेल वो डालते हैं ना, माइट बी इनिशियली उन्हें काम नहीं लगता है, पर आफ्टर 4-5 इयर्स एक्चुअली आपका डिटेलिंग ही आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है कि आपने जो बोल रहे हो आप वो बेच रहे हो। और जब रिटर्न आता है ना, तो आप कस्टमर के कम्युनिकेट कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, एक जगह ये मीट नहीं हो तो यू ने एवरीथिंग इज देयर। अमेज़न पे भी आप जब कोई प्रोडक्ट बाय करते हो ना, तो अगर उसका A+ कंटेंट अच्छा है ना, तो आप उसको पहले बाय करो, और अगर सिर्फ सादा सीधा डेटा डालना है ना, तो आप बाय नहीं करो। तो these are the two चीज है, जो स्टार्टअप हो या एंटरप्रेन्योर हो या एनीबॉडी, ये दो चीज बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद जो आते जो चैलेंज आई थिंक नीचे में डिस्कस कर रहा था कि रिटर्न में गलत प्रोडक्ट आ जाते हैं, जब प्रॉब्लम विच नॉट आई थिंक इंडिया इज फेसिंग, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल किड, I am working with the big brand, they are facing same problem. People are buying of 10-day good और लेते हैं और रिटर्न में नॉन प्रोडक्ट भिजवा देते हैं। These are the challenges which we have to fight, but कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि we have to think कि यही हम भी हमारे में भी कहीं ना कहीं ये है जो इंडिया, तो we have to start from us, how we change ourselves, then we will be changed. And for technology, मैं टेक्नोलॉजी बंदा हूँ, पर मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी आपके लिए लीस्ट कंसर्न होना चाहिए, आपका फोकस धंधे पे होना चाहिए, और आपको ये डिसाइड करना है कि अभी मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। समटाइम कोई बंदा मुझे बोलता है कि मेरे पास ये बजट, मेरा वर्डप्रेस में बना दे साइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले साइट तो बना। तुझे सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है ना, आपके पास डेटा नहीं होता है। पीपल आता है मुझे साइट बनाना है, महीने में बनाना है, मैं बोलता हूँ डेटा का है ना, उनके पास फोटोग्राफ होता है ना, कंटेंट होता है ना, डिटेल्स होता है, 6 महीना तो डिटेल में लगा, तब तक वो मेरे पास डिजाइनिंग बनवाता है, लाल कर, ये पीला कर, इसको ऊपर ले, इसको नीचे ले, बिकॉज़ उनके पास डेटा नहीं है, वो टाइम वेस्ट कर। तो फोकस ये कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी वेबसाइट पे एक बना दो कि आपका सब डेटा गैदर होता है, या तो अमेज़न पे बना दो, अमेज़न पे A+ कंटेंट डाल दो, आपका जब कंटेंट रेडी हो जाना, उस दिन आप वेबसाइट बनाने के लिए रेडी हो, वरना वेबसाइट बनाने के लिए रेडी नहीं हो। तो पहले तो ये चीज चाहिए कि कभी वेबसाइट बनानी चाहिए। देखो मेरे पास आओ तो मैं पैसा मेरे जो इनकम है, कभी नहीं बोलता वेबसाइट मत बना, और मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ कि आप किस दिन रेडी हो, जिस दिन आपका डेटा रेडी है, आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपका A+ कंटेंट रेडी है, और उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि एक्चुअली वेबसाइट कैसा बनेगा। वरना आप पहले बोलोगे कि ये फोटो डाल के वेबसाइट बनाते नहीं। तो these are the 3-4 core things। कोई भी स्टार्टअप या कोई भी इवन मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी कॉर्पोरेट भी यही चीज तो ध्यान रखती है कि कंटेंट, प्रोडक्ट की नॉलेज और प्रोडक्ट को कैसे दिखाना है, और जो मेजर एक्सप्लेन, आप तो अपना यूएसपी पता होना चाहिए, तुझे आप वैसे ही कंटेंट बनाओ। आप तो पता है कि आप मंत्रा से का पिक नहीं कर लो, या आपको पता है कि आप 500 वाली कुर्ती से पिक नहीं कर लो, या सी नोस पे वो चांदी बेच रही है, तो उनका कंटेंट वैसे होता है, और फिर वो हिसाब से सोशल मीडिया पे जाओ। पब्लिक समझता है सोशल मीडिया पे जाओ, तो सोशल मीडिया पे कोई भी टाइप के वीडियो बनाने चालू कर दे, they don't understand कि वो अपनी ब्रांड वैल्यू डाउन कर रहा है। तो you should do everything whatever people say, पर वो आपके स्टोरी के अराउंड होना चाहिए, नहीं तो बस सब लोग बना रहे और हम भी बनाते जा रहे, जिससे आपकी वैल्यू डाउन हो रही है, आपका ट्रस्ट जो भी बनाया है या जो भी किया वो टूटना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी बनाओ, ऐसी बनाओ कि 3 साल चले। मैं नहीं बोलूंगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने वेबसाइट बनाई 10 साल चले। टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है एवरी डे, पर एटलीस्ट 3 साल के लिए वो प्रॉपर चले, वो आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, वरना आप री इन्वेस्ट करते जाओगे, फिर आप आईटी टीम रखोगे और उसमें जुड़ जाओगे, और आप अपना फोकस जो धंधे से वो चेंज हो जाए, आप आईटी पे शिफ्ट हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Again, I am moving towards the brands. So the next question that I would like to understand, Akash, I got to know from you
कि आप मार्केट प्लेस पे नहीं जाना चाहते हो, प्लस आपने COD बंद किया हुआ है, आपने नो रिटर्न पॉलिसी रखी हुई है, टेक्निकली जो लोग बाकी सब कर रहे हैं उनसे सब अलग कर रहे हो, तो हाउ यू हैव सस्टेन्ड, सर्वाइव्ड एंड ग्रोन? See, first and foremost, marketplace पे ना जाने का reason is purely because my products are slightly higher side में, pricing wise. So marketplace doesn't serve purpose for me. They charge me like 25% of margins, which doesn't help me in any which ways. And my aim, like it's been hardly 3.5 years, my aim is not to crack a 100 CR company. My aim is to grow sustainably with margins. That's my aim. So that's why D2C through my own website and COD we have is as if we try and promote to our customers that you go for prepaid. We will give you a 10% off, but go for prepaid. Because COD में बहुत से AD charges होते हैं for a brand, which बहुत tough होता है अपने product में calculate करना. From courier charges increase हो जाते हैं, अगर उसमें RTO हो जाए तो अलग है, and there are several other things, right? And बहुत बार customer reject कर देता है, because we are at the end we are living in India, so it's tough to solve these problems. And we don't do refunds because, as he said, detailing is important, and we take care of the details to the core. Everything which we mentioned, from the size of the button to the name of the fabric to the color, everything we make sure कि जब बंदे को मिले तो वो वेबसाइट पे जैसे दिख रहा है प्रोडक्ट उससे one notch up मिले. So that makes our life easy. And we have a very strong customer support team. So as soon as someone places an order with us, we call them up, even if it's a prepaid order. We call them up, we discuss about their sizing. We generally ask them. For example, we know that most of the people who shop from us shop from Zara, shop from Marks and Spencer. So उनको अपने Zara की sizing हमेशा याद होती है, and that is what we follow. So our sizing, मतलब our sizing return is hardly 2.5%. That's it, which is industry standards से बहुत low है. So that we have been able to solve. Yeah. So I guess we have one more from the fashion industry, and I would like to know the differentiation, the USP, how you make different from other people, those who are dealing into fashion, and what is USP, where you build your brand for the same. Sir, USP was quite simple. कि हम तो सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छा शूट करो, अच्छा वीडियो कंटेंट करो. इंडिया की पब्लिक बहुत इम्पल्सिव बाइंग हो गई है आजकल. टियर 1 सिटीज की जो है इम्पल्सिव बाइंग है. कोई भी प्रोडक्ट देखा, क्लिक किया और वो परचेज करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं. अब आप उसी को क्रैक कर लो कि आपका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका देखते ही पसंद आ जाए. तो बस वही है सर. Again, I am having a different categories, तो मैं वापस 2% जो एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किचन वेयर. तो again, it's not that common for going online, और इतना easy नहीं है शायद. और एक और रीजन देख सकता हूँ, अगर आज मैंने किचन नया रेडी किया है तो today I need that products, but अब next टाइम मैं कब बाय करूँगा वो मुझे नहीं मालूम है. So it's not that easy to have a repeat orders or recurring orders. तो आप वो चैलेंज कैसे डील कर रहे हो, या आपके लिए आपकी USP कहाँ पे है? How you started this category? ये ट्रेंड चेंज हो रहा है. अब ऐसा नहीं है कि कोई एक सेट खरीदी है तो उसको सालों साल चलाएंगे और जब वो टूटेगा तभी दूसरा लेना है. जैसे इन्होंने बोला इम्पल्सिव बाइंग काफी हो गई, तो ऑनलाइन अगर कोई कंटेंट किसी को बहुत बढ़िया लगता है और पसंद आ रहा है तो फिर उनके पास घर में चाहे एक्स्ट्रा हो लेकिन वो उसको खरीदना स्टार्ट कर दिए. दूसरा चीज, ऑनलाइन कंटेंट की वजह से क्या हो रहा है कि आजकल रेस्टोरेंट्स के वीडियोस, फूड के वीडियोस, हम सब ने कोरोना में देखा कि सब शेफ बन गए हैं, सबको क्रॉकरी चाहिए घर पे, सबको सजा के प्लेटर बनाना है, तो वो कौन देगा? वो हम देंगे. तो ये सारी चीजें जो पहले बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी मासेस को, वो हमने स्टार्ट किया वहाँ पे प्रोवाइड कराना. फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूर था इसमें कि लेवरेज मिला हमें. ऑफलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तो एक वो कनेक्शन और डीप हुआ लोगों का कि ऑफलाइन स्टोर्स में भी दिख रहा है, मॉडर्न ट्रेड में भी दिख रहा है, और अब ऑनलाइन भी कंटेंट मिल रहा है. तो वहाँ से वो चीज़ें लोगों की एक्सेप्टेंस आने लग गई है. एंड ये चैलेंज नहीं लगता हमें है कि सेल कैसे आएगी, रिपीट कस्टमर ऑर्डर कैसे आए. इनफैक्ट हमारा कस्टमर रिपीट ऑर्डर ज़्यादा है. सो दैट इज नॉट अ चैलेंज. आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, जो आपने दिखाया वो एज इट इज कस्टमर को मिले. जैसे सर बोल रहे हैं कि उस पर वर्क होना चाहिए. आपको
ये ध्यान रखना है कि कस्टमर इसको रिटर्न नहीं करे। वो सारे क्वेश्चंस को टिक लगाने हैं आपको कि कस्टमर रिटर्न क्यों कर सकता है, तो मुझे ये भी सॉल्व करना है, ये भी आंसर देना है, ये भी आंसर देना है। उसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड आपने वो कंटेंट में प्रोवाइड करा दिया, तो आपने अपना ही खर्चा बचाया। तो इस पे वर्क करते रहेंगे तो आई थिंक कोई भी कैटेगरी हमारी की कोई भी कैटेगरी में हो सकता है। Anushri, you also had one word, beautiful kitchens. So certainly I would like to emphasize on that. आपका क्वेश्चन ये था कि ये कैटेगरी में रिपीट नहीं है। I mean, the way we see as an outside of the world, right? हमने वहाँ पे आपने हाथ डाले हुए हैं, so you know the things. So what we see कि ये कैटेगरी के बिजनेस है जो डिफरेंट कैटेगरी है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस से थोड़ा हटके है, तो वहाँ पे कैसे मैनेज होता है या हाउ यू एंटर इन, हाउ यू ओवरकम दोस थिंग्स एंड व्हाट हेल्प्स यू टू बिल्ड दिस बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। दो चीजें बहुत कॉमन हो गई इंडिया में, लाइफस्टाइल बदल गई है। हमारे फैमिली प्रोडक्ट्स अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होते जा रहे हैं। एग्जांपल, पहले घर पे पानी की बोतल पूरी फैमिली के लिए अगर 4 जने रह रहे हैं तो 4 या 5 बोतल होती थी घर। अब ऐसा नहीं, अब एक बंदे को जिम की अलग बोतल चाहिए, घर पे रहेगा अलग चाहिए, अगर वो गलती से ऑफिस जाता है उसको कैरी करनी तो वो अलग। तो आपको ये समझना पड़ेगा कंज्यूमर चाहता क्या है, बोल क्या रहा है, कैटेगरी क्या है। सेकंड, मतलब आपने राइटली बोला, हमारी कैटेगरी इंपल्स नहीं है, और बिल्कुल भी इंपल्स नहीं है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे साथ। कितना ही दिखा लो, कितना ही कुछ कर लो, एकदम से खरीदने चले जाए जैसे फैशन की तरह जाता है या फिर उसमें, तो नहीं। उसका दूसरा तरीका क्या होता है कि इंपल्स नहीं तो यार इसको अपग्रेड करो। अब अपग्रेड के लिए क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर पे जाओ। हेल्थ चाहिए मेरे को, तो हेल्थ चाहिए तो भैया प्लास्टिक को बाहर निकालो, ग्लास को अंदर लेके आओ। मेरे को चाइनीज प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो ठीक है भाई, तू हिंदुस्तान की मिट्टी के बने हुए कप्स सॉसर्स डिनरवेयर के प्रोडक्ट्स ले, उस पे थोड़ा ब्यूटी का तड़का मारो। सो बेसिकली यार दो ही चीजें हैं, अगर आपके पास इंपल्स नहीं है, आपकी कैटेगरी का बिहेवियर अगर एकदम से इंपल्स नहीं है, तो आप उसको अपग्रेड करो। क्योंकि ये हमारी वाली कैटेगरी में प्रॉब्लम क्या है, किचन अगर 200 स्क्वायर फीट की है ना एक घर में, तो वो 250 स्क्वायर फीट की कभी नहीं होगी। वार्डरोब में कपड़े आते जाते रहेंगे, किचन में जो किचन का ओनर है ना, आज भी हम सब बैठे हैं, हमारे में से किसी की हिम्मत नहीं है हम किचन में से आके कोई आइटम उठाए बोले ये फेंकना है, हम चेंज करेंगे। मतलब किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे। जो ओनर है ना किचन का, जो भी संभाल रहा है, whomsoever it is, मेल फीमेल जो भी है, भैया उससे पूछना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट अंदर घुसेगा, और उससे पहले वो आपसे वो सवाल पूछेगा, भैया बाहर क्या लेके जा रहा है, जगह नहीं है मेरे पास। तो कैटेगरी की प्रॉब्लम तो समझो, या तो अपग्रेड करा के पुराने प्रोडक्ट को बाहर निकाल दो, या फिर दूसरी चीज है उसको ये समझाओ कि भैया ट्रेंड नहीं चल रहा, आपके पास जो है ना बहुत पिछड़े हुए हो, जब आपका गेस्ट आएगा ना उसको ये लगेगा आपने क्या रख रखा है। मतलब 5 करोड़ के घर में आपने प्लास्टिक के ग्लास लग रखे हैं, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई तू गलत कर, तो आपको साइकी पे हिट करना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट इससे ज्यादा साइकी को हिट करते रहो, वो कस्टमर धीरे धीरे करके अपग्रेडेशन हो जाता है। Through the platform you give the option to everyone कि कैसे आपको चेंज करना है, क्या करना चाहिए, एंड चेंज करके फिर उनकी साइट पे जाके वापस से बाय भी करते हैं। Everyone please visit Filmora and buy something यार, अपग्रेड करो अपने आप। लाइक फॉलो कमेंट शेयर जो भी कर सकते हैं वो सब कर दो यार। So we have again a similar kind of different category for other two people, which is not that traditional. So one is dealing in the silver and the other is dealing with the pregnancy and post-pregnancy period. तो again वो भी category ऐसी है कि we are not buying every day, या साल में उतनी ज़्यादा time buy नहीं करेंगे। And when we talk about pregnancy, वो तो life में once or twice वाला case है। So how did you find that USP? What is your secret sauce behind the success story, and how do you like to put that? And certainly I have one more question for you. What is the journey before the Shark Tank and after the Shark Tank? I'm sure everyone wants to know about that. So coming to your first question, what our mood is, yeah, हम कैसे करें? तो obviously that was one challenge कि एक customer journey छोटी है, plus it's a very sensitive time of their life, जो everything जो घर के procedures है उसमें ही बहुत ज़्यादा control किया जाता है, तो obviously
there's a very high chance to outer products को इतना नहीं करेंगे. But having said that, I believe हमारा जो movement रहा है, the brand, the positioning has been somewhat like we act as a motherly figure around it. तो हम basically हमारा target नहीं है जो tier 2, tier 3 cities में joint families में अपने साथ रहते हैं. We actually target people who are living alone, who do not have support of their mothers or grandmothers or people नानी दादी का support नहीं है या nobody to take care of them. So we act as someone who's coming in and substituting that area of their life. Also, I believe to start it was very difficult. ये product, I can assure that मैंने बहुत research किया ये product. I believe we are still the largest one selling pregnancy nutrition products, and we were the first one in fact to start it across the country. बहुत लोग पूछते थे कि यार ये कैसे काम करेगा, इतना छोटा मार्जिन है, वो है, बहुत लोग घर में ही बनाते हैं, आप कैसे करोगे? तो मेरा अल्टीमेटली इंसाइट था कि आज से 40 साल पहले अचार भी घर में बनता था, पर सब डिलॉन्स और मदर्स को भी ये कहते थे क्या बेच लोगे? नाउ लुक एट द $1 billion growth story they have. So similarly, over the time, there are people who will not know how to make these things or make this thing at the correct status and correct level of it. वो चीज हम कर पाए तो that changed our game for us. About Shark Tank. Shark Tank, yeah. So Shark Tank में भी I believe बहुत ही it was a very wonderful experience to say the least. हमने apply किया था Shark Tank के लिए on the very first season, and by far उस समय we were the first company from first startup from Rajasthan to feature in the show. Just the कहानी तो बहुत लंबी है कि उसके 6-8 months का procedure होता है, there are multiple rounds, clearances and all those things. So I'll tell you what the effect of Shark Tank is rather than what we did to get in there. वो आपको बहुत लोग बता रहे हैं. Effect it generally actually helps you get an insight कि हाँ काम कैसे होता है. तो before Shark Tank, एक reference के लिए जो हमारा annual turnover था, immediately after Shark Tank वो हमारा weekly turnover. तो imagine the growth that we had, 50%. And फिर suddenly once you start growing on scale, आप उसको देखने लगते हो कि यार ये चीजें हो रही है ना, तो obviously you start manufacturing solutions around it. एक होता है कि आप organically धीरे-धीरे बढ़ रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम एक आएगी उसको सॉल्व करोगे, फिर हर्डल नेक्स्ट पे करोगे. हमारे पास तो ऐसा हुआ कि किसी ने पूरी भर के हर्डल हमारे ऊपर डाल दिए से. तो we featured in I think around Jan और अक्टूबर तक तो हमें ये नहीं पता था हम कर क्या रहे हैं. I guess this kind of hurdles are always good. Yeah, in due course. In hindsight, I would say it was a good strategy for us as well. Made us what we are today, to say the least. Awesome. Asta? So, the question is the USP. Yes. How you made that differentiation to work for your business, and what is the, where you find like what make you succeed in your journey, being a different in a different tech. Correct. See, jewelry. When I am selling or I am making a pure silver product, I always, try to make it a timeless piece which you can pass on to generations. अब सालों साल रखो आप, वो एक अलग ही फीलिंग होती है. Because वो एक ऐसा मेटल आइटम नहीं कि ठीक है खराब हो गया, सिल्वर है तो उसकी क्राफ्टिंग आप जितनी अच्छी करोगे, ज्वेलरी की डिजाइनिंग जितनी अच्छी करोगे, उतना मजा आएगा और उतना अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा. अब बस सवाल ये है कि ऑनलाइन स्पेस में उतना ट्रैक्शन कैसे. ब्रिक एंड मोर्टार में तो टच एंड फील होता है, आप समझा सकते हो जी कारीगर ने इतने घंटे बनाए, ये लगाए, ये किया है, एंड पीपल आर अट्रैक्टेड. सो ऑनलाइन स्पेस में इसी चीज को हमने वो डिजाइनिंग और उसको दिखाना ही सबसे बड़ा यूएसपी है हमारी ब्रांड का. हम जिस तरीके से उसको शोकेस कर रहे हैं, जितनी डिटेलिंग के साथ उसको दिखा रहे हैं, हर प्रोडक्ट की एक स्टोरी है. हर प्रोडक्ट की जब डिजाइनिंग होती है तो उसके वो एक स्टोरी के बेस पे होती है, उस पे एक बहुत बहुत
लंबा आइडिएशन होता है, उसके बाद बहुत सारे सैंपल्स बनते हैं, उसके बाद वो अप्रूव होता है, उसके बाद उसकी लॉन्चिंग होती है। तो मैं कहूँगी शायद का प्रोडक्ट ही एक एक्सपीरियंस है लोगों के जो हम क्रिएट करना चाहते हैं और जो हम देख भी रहे हैं। वी आर सीइंग दैट काइंड ऑफ ट्रैक्शन। दूसरी बात ये है कि हमने ये चीज भी क्रैक की है। मैं समझती हूँ पहली बार में आप 10,000 का नेकलेस तो नहीं खरीदोगे ना, मतलब यू नीड टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट इन द ब्रांड। तो हमने हमारी प्राइस रेंज को 1000 से 30,000 इतने ब्रॉड प्राइस रेंज में हम काम कर रहे हैं। और पॉसिबल है ज्वेलरी में आप मिनिमलिस्ट बनाओ, ग्रैंड बनाओ, इतनी सारी कैटेगरीज है। और आपने ये ना एक इमोशनल क्वेश्चन होता है जिसको आपने अगर टच कर लिया when it comes to women और even in the males gifting purpose के लिए एक बहुत बड़ा segment है ये। And we are also working on the men's jewelry these days. It's a huge trend thanks to the Bollywood industry जिसने especially silver को तो बहुत अच्छा there's a good trend which is going on. And as a brand मुझे लगता है मतलब ये मत सोचो कि यार ये चल रहा है तो ये करना है, ये नहीं चल रहा तो ये नहीं कर सकते। ट्रेंड सेट करो ना, इतना बड़ा स्पेस है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप अपने प्रोडक्ट पे दिमाग लगाओ और ट्रेंड खुद ही सेट करो। आप you be the trend setter and you see that your product is being featured in the in the magazines or on the Bollywood celebrities etc. We have done that. You'll see Madhuri Dixit adorning child. You see I have celebrities who are wearing child. We also have a client from the film industry. हमने थोड़ी सोचा था तब स्टार्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहली बार तो आप डिजाइनिंग भी नहीं कर सकते, आपके एमक्यूज होते हैं, आप 50 यूनिट कैसे बना लोगे। तो आप अपना दिमाग वो इसी चीज को हमने यूएसपी बनाया है। मेरा मतलब सारा फोकस ही, और मैं ये कहूँगी सिर्फ एक ठीक है योर यूएसपी व्हेन आई कॉल चाइल्ड, ठीक है आवर यूएसपीज आर डिजाइनिंग एंड हाउ वी आर पोर्ट्रेइंग 350,000 का फॉलोअर बेस इंस्टाग्राम पे, ऑथेंटिक, we've never bought it, we've never tried to grab that was short term success वाला ट्रायल हमने नहीं मारा इंस्टाग्राम पे, and we see that kind of traction on the handle। तो ये सब चीजों के साथ मेरे को लगता है पूरे I repeat it again, मैंने पहले भी बोला, पूरे फनल में हर टच पॉइंट, अगर आप D2C ब्रांड में हो, आपको हर पॉइंट को ही मतलब हर पॉइंट पे बेस्ट होना पड़ेगा तो ही आप सक्सीड हो। आपने एक्सपीरियंस खराब कर दिया या आपने प्रोडक्ट खराब कर दिया, आपने दिखा गलत दिया, प्रोडक्ट खराब कर दिया, दिखा गलत दिया, तो आपको वैसे ही डेड हो। और आपने अगर उसको बेच भी दिया, आपने एक्सपीरियंस खराब कर दिया पोस्ट परचेज, तो आपकी रिपीट रेट कुछ नहीं। बीइंग अ ज्वेलरी ब्रांड हम एकदम नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी है हमारी, और जो रेयर है इंडस्ट्री में। और उसके बाद भी हमारा जो रिटर्न रेट चल रहा है वो 1.5% चल रहा है, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। सो ये क्यों? क्योंकि हम हर पॉइंट को ही टच कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कहीं भी कोई वॉइड ना आए, कहीं भी हम वो इशू ना क्रिएट करें। सो दिस इज व्हाट आई से, यूएसपी तो बनाओ, लेकिन हर चीज हर पॉइंट को ही अगर बेस्ट कर लोगे ना तो रुकेंगे तो नहीं है। And we can make it a sustainable business model. Great. So, Tejas, brands are making e-commerce website, but I guess the backbone is always in your hand. So, how you help them? How you define? Everyone has a different type of need. अलग-अलग लोग अलग-अलग business कर रहे हैं, तो हर एक के लिए क्या differentiation होता है? And how you help them with the use of technology? So basically इनका आंसर मैं दूँ इन अराउंड द ग्रोथ। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो सेकंड पार्ट आता है, पहला पार्ट आता है कि अंडरस्टैंड, हमें उनके साथ बैठ के अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि क्या चाहिए। जैसे अभी मैं इनसे पेंडर से बात कर रहा था, तो जैसे वो शॉपिफाई पे वेबसाइट भेज रहे हैं, नाउ दे वांट टू लॉन्च अ स्टोर इन फ्यूचर, तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज सेकेंडरी पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये होता है कि हम मर्चेंट के साथ बैठ के उनका विजन समझते हैं कि वो क्या एक्सपेक्टिंग। टेक्नोलॉजी का इट्स अ टूल।
हमने टेक्नोलॉजी को भगवान बना दिया, जो सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से। मैं टेक्नोलॉजी बंदा हूं, पर हमने टेक्नोलॉजी पे ही जीना चालू कर दिया, जबकि टेक्नोलॉजी को यूज एज अ टूल। हम बोलते थे टेक्नोलॉजी हमारे लिए सब करना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला टच पॉइंट, तो टच पॉइंट में टेक्नोलॉजी से टच पॉइंट दे पाएगा, बट टच पॉइंट पे मैसेज क्या डालना वो तो इन्हें डिफाइन करना। प्रोडक्ट डेटा डालना टेक्नोलॉजी पे, पर प्रोडक्ट में डेटा क्या डालना वो तो उन पे डिफाइन करना। तो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अ टूल एंड इट कैन बी यूज्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट। और इसके लिए जैसे मैं समझ आता है, अभी आई डोंट नो स्टिल इन इंडिया पीपल डोंट प्रेफर अ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। जैसे आप जब लीगल के लिए जाते हो तो आप एडवाइस लेते हो। अभी हमारे पास वेबसाइट कैसे बनती है कि किसी और को पूछा, अरे ये सॉफ्टवेयर बना है, इतने रुपए में, चलो हम भी बना लें। They don't understand first their business, they don't understand what their vision, क्या उनको क्या अचीव करना है। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है इंडिया में, भाव कितना है, मतलब they always ask about भाव। फिर मेरे को ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट का भाव कितना है। So they have to understand कि टेक्नोलॉजी कॉस्ट के साथ आती है और हर चीज का पैसा लगता है, और टेक्नोलॉजी सबसे कॉस्टलीस्ट है। तो देखो there are people come to us कि मुझे वेबसाइट बनानी, Amazon जैसी बनानी। When I ask question, बजट कितना है, तो बोलते हैं 50,000। मुझे लगता है मुझे उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए, मतलब व्हाट यू आर टॉकिंग। तो यहाँ पे ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। यू टू एक्सप्लोर विद द मेनी पीपल। जैसे आपके रिलेवेंट ब्रांड है, आप उनसे समझिए कि वो क्या कर रहे हैं, Amazon पे बेच रहे हैं, दिस ऑल आर टेक्नोलॉजी। वेबसाइट इज वन ऑफ अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस चला रहे, आप वेबसाइट नहीं बना रहे। आपके बिजनेस में परचेज करना, सेल करना, डिलीवरी करना, टेक्नोलॉजी बहुत छोटा सा पार्ट होता है मेरे हिसाब से। वेबसाइट इज ओनली अ 2%, वो सिर्फ सेल्स चैनल है एडिशनल, उससे नहीं होता है बिजनेस। वेबसाइट के ज्यादा आपका जो पूरा ऑपरेशन है, हर चीज आपका, जैसे हर एक टच पॉइंट पे आपके आंसर दे। तो टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व प्रॉब्लम वंस यू आर क्लियर विद इट। फिर मैं आपको हायर चीज भी दे सकता हूँ, सेल्स फोर्स भी दे सकता हूँ, जो सीआरएम भी दे सकता हूँ, और छोटे सीआरएम भी दे सकता हूँ। और व्हेन यू आर क्लियर, वी कैन सजेस्ट you what exactly will work for you as of now। 10 करोड़ करके आप ये यूज कर लो, when you reach 1000 करोड़, you have to go for Salesforce। फिर आप नहीं बोल सकते नहीं मैं इससे चला लूंगा। फिर माइट भी Shopify में बना रहे हो, you have to shift to Salesforce और Sales e-commerce। तुझे everything have their demand। या तो कस्टमाइज वर्जन तो बनाना पड़ेगा, या तो खुद का कस्टम प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। It's totally depend upon where you reach, what stage you reach, and how much you want to invest। Thank you everyone. So I guess we are running out of time. Just to summarize, like what I have understood from all of you, the product is super important. आपको कुछ भी बेचना है, सबसे पहले focus on your product, the detailing of the product when you are putting it online. So make sure आप जो बोल रहे हो वही बेच रहे हो. Then pricing, understand about your plan and the promotion. That's 4P, I would say, that is more important. So yeah, thank you everyone, and I'm making this open for the Q&A. Yeah. Elevate the brand in a positive way, touching every single point throughout the path. Thank you. So I'm Manushree, founder of Fibora. So मेरी 12th standard खत्म हुई थी 2014 में, and that's where फ्लिपकार्ट आ चुका था, स्नैपडील हाइप पे था, जॉबॉम करके एक प्लेटफॉर्म था, these were the platform, and it was more like काम करना है, कमाना है, अपना खर्चा निकलना चाहिए दिन का, बाकी चीजें बात की बात। मॉडल बड़ा सिंपल था, आस पड़ोस गए, भैया जिसके पास जो टेक्स्ट स्टॉक पड़ा है सब दे दो, ना कोई पैसे मांगता था, ना कोई माल पूछता था। ऐसे कर करके सो मैंने करीबन 12 कैटेगरीज में काम किया, ज्वेलरी, होम डेकोर, होम फर्निशिंग, सॉफ्ट अप्लायंसेस, लार्ज अप्लायंसेस, हेल्थ एंड पर्सनल केयर। Ended up becoming brand partners for 20 to 30 pan-India brands such as Joy, Himalaya, Nelly Bogo brands, then in kitchenware, Cello, Midland, Laopala, and so on and so forth. ऐसे कर करके बिजनेस किया, बिजनेस कर भी रहे थे, लेकिन साथ में मोदी जी भी कुछ ज्यादा ही साथ थे। वैट, जीएसटी हो गया, डिमोनेटाइजेशन आ गया, चीजें बदलती गई। Then 2019 में रियलाइज किया कि यार ये जो ट्रेडिंग का बिजनेस है, कर तो रहे
धंधा भी बन रहा है और चीजें चल रही हैं, बट मजा नहीं आ रहा क्योंकि क्या होता है कि आप फ्यूचर नहीं देख पाते अपना। ट्रेडिंग में आप जो सप्लाई साइड मिल रहा है उसको आप बाइंग साइड में रखते हो, इररिस्पेक्टिव आपको लगता है कि वो सेंस बनाएगी नहीं बनाएगी। इनिशियली एक एक्यूमेंट होता है, हाँ बेचते तो फिर सेकंड एक्यूमेंट होता है प्राइस डाल दो यार अपने आप बिकेगा। वो किया। देन 2019 आई स्क्रैप्ड एवरीथिंग कि यार कुछ नहीं करना। किचन वेयर एक मेरी बकेट में एक सेगमेंट था जो मुझे एक्साइट करता था। क्यों करता था? सबसे स्लो था, चीजें बदली नहीं थी। हम नॉर्मल किचन से मॉड्यूलर किचन में जा चुके थे। एक नॉर्मल बेडरूम से एक बहुत ही स्मार्ट लाइटिंग वाला बेडरूम और नई नई चीजें आ चुकी थी। सो दैट्स वेयर ये एक ऐसी कैटेगरी थी जहाँ पे सारे लेगेसी ब्रांड थे 15 साल पुराने। कंज्यूमर की होल्डिंग ऐसी थी कि यार मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, तो मैं नया क्या लूं। अगर मैं यहाँ पे किसी से पूछूंगा कि आप कोई भी ऐसे 5 हाउसहोल्ड ब्रांड्स के नाम बताओ जो पिछले 4 साल में बर्थ किए हो, सो मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ पे 5 ब्रांड्स के नाम भी बता पाए। सो ये वैलिडेशन होगी कि हाँ बॉस जगह तो हो सकती है, धंधा बड़ा, ऑलरेडी ये ब्रांड्स मोर देन 500 करोड़ 1000 करोड़ ब्रांड्स बना चुके हैं। एंड दैट्स हाउ फिमोरा स्टार्टेड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ा सिंपल था। घर मतलब हम इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, घर छोटे होते जा रहे हैं, किचन और छोटी होती जा रही है, बट खाने की लाइफस्टाइल हमारी बदलती जा रही है। एंड दैट्स वेयर वी केम अप किया भैया किचन को ऑर्गेनाइज करो और उसको ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करो। दैट्स व्हाट मिलेनियल्स नीडेड एट दैट टाइम। With this thought, we started, and there were trends which were coming in place. जैसे प्लास्टिक बाहर जा रहा था किचन से, एल्यूमिनियम बाहर जा रहा था. We took the advantage of trend, and then problem solving थोड़े बहुत products बनाए, pitch करे, market place से proofing मिलती गई, and this is how we have gained and we have moved ahead with the time. Hi, I'm Akash. I'm the co-founder of October Jaipur. So we started in very early 2015, and we started with the vision of making a brand. कि हम एक बहुत बड़ा brand बनाएंगे, एक niche brand बनाएंगे. But in 2015 itself, we realized that at that time, I think Instagram was not very active in India. So we made a page on Facebook, and we were doing some sales here and there. But I come from MP and living in Jaipur, so मेरे अपने खर्चे निकालने के लिए it was not enough, just to retail. So we somehow realized that B2B is a great market. So we got into B2B. So B2B still is a very big part of us. We have at least 100 plus artisans working with us. So we export to US and Europe. We make leather goods. But I think we started our retail section in 2019, right after COVID. Sorry, 2020, right after COVID, March. And since then, we have been catering to men and women apparel. And the problems which we face, see, sales can still be sorted with performance marketing, maybe content generation, but the major problem which we face on Instagram and Facebook or this internet world is brand building. Because I feel it might take time, but if you're able to crack brand building, it's a long-term game. Sales, as all of us we discuss, is the most important part, but this is my understanding that it can still be solved with a little bit of marketing, good content, good customer service, or definitely a अच्छा product. But brand building is my issue which I'm trying to solve, and in 2024 my aim is to create a brand कि at least मुझे लोग पहचाने, इस brand को लोग जाने, और किस चीज़ के लिए जाने कि they make different apparel. They are very design led, but the prices are not extremely high. So our average order value is around 5,500. I will not say it's very cheap, but it's not very highly priced. It's mass premium, and where I feel Indian middle class is moving towards mass premium products. So yeah. This is what we do. Thank you. Thank you, Akash. Tejas, I have a different question for you since you are from the different category. So here I can see there are so many people जिनको अपनी वेबसाइट बनानी है, e-commerce में जाना है. So what are the 3 to 5 checkpoints for the initial day that you would like to say about the technology, choosing the right technology or building a right e-commerce website for their own business? तो भाई गुडरेज है ना, मैंने सब बड़ी ब्रांड से लेके छोटी ब्रांड से काम किया। जैसे जब आप लोग ने नाम सुना होगा आपके का बुनाई जब स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट नाउ वी हैव मोर देन 60-70 I think there are the 3.4 which I get people are not taking seriously. First major part, they don't make SKU numbers.
and I think people don't take seriously to make a SKU numbers of their product. I think if they want to grow on a bigger scale, they should have a proper SKU numbering system. Because when you do return, refund, or everything, the SKU number is an actual way you understand that these products came to you and these products you are doing it. Second part, people don't take serious about their photograph. People don't understand the importance of photograph. But I think we are talking right now, if they overall because you made very value in their photograph. Because customer वही देखता है जो आप दिखा रहे हैं, वो फोटो देख के ही आगे बढ़ने वाला है। आप सोशल मीडिया में कितना भी डालोगे सब थोड़े, पर आप जब अपनी वेबसाइट के ऊपर लाओगे और वो फोटो बराबर नहीं दिख रहा है, डेटा बराबर पढ़ नहीं पा रहा है, इवन आप प्लेटफॉर्म पे भी जब ऊपर फ्लिपकार्ट पे डालोगे, अमेज़न पे डालोगे, वहाँ पे आप जो डेटा डालते हो, अगर आप अपनी खुद की बिहेवियर देखोगे ना, तो आप जब जाते एमआई का प्रोडक्ट ले लेते हो तो हर चीज का छोटा छोटा डिटेल डालता है। सैमसंग उनके ज्यादा देते हैं पर हम एमआई लेते हैं, बिकॉज एमआई हर एक चीज की डिटेल डालता है कि स्टेज चेंज। तो हर प्रोडक्ट की जितनी आप डिटेल डालोगे, जो आई थिंक इफ यू सी फॉरेन ब्रांड और इंडियन ब्रांड में जो मुझे डिफरेंस दिखता है जब मैं बढ़ता हूँ, ये वर्ड होना डिटेल, और जितना डिटेल वो डालते हैं ना, माइट बी इनिशियली उन्हें काम नहीं लगता है, पर आफ्टर 4-5 इयर्स एक्चुअली आपका डिटेल ही नहीं, आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है कि आपने जो बोल रहे हो आप वो बेच रहे हो। और जब रिटर्न आता है ना, तो आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। तो इफ दे से ये मिल नहीं हो तो फिर यू ले एवरीथिंग इज देयर। अमेज़न पे भी आप जब कोई प्रोडक्ट बाय करते हो ना, तो अगर उसका A+ कंटेंट अच्छा है ना, तो आप उसको पहले बाय करो, और अगर सिर्फ सादा सीधा डेटा डालना है ना, तो आप बाय नहीं करो। तो these are the two चीज है, जो स्टार्टअप हो या एंटरप्रेन्योर हो या एनीबॉडी, ये दो चीज बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद जो आते हैं जो चीजें जी आई थिंक इनसे में डिस्कस कर रहा था कि रिटर्न में गलत प्रोडक्ट आ जाते हैं, जब प्रॉब्लम इज नॉट आई थिंक इंडिया इज फेसिंग, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल किड, आई एम वर्किंग विद द बिग ब्रांड, दे आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम। पीपल आर बाइंग ऑफ 10 lakh गुड और लेते हैं और रिटर्न में नॉन प्रोडक्ट भिजवा देते हैं। दिस आर द चैलेंजेस व्हिच वी हैव टू फाइट, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वी हैव टू थिंक कि यही हम भी हमारे में भी कहीं ना कहीं ये है इंडिया। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अस, हाउ वी चेंज आवरसेल्फ, then we will be changed. And for technology, मैं टेक्नोलॉजी बंदा हूँ, पर मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी आपके लिए लीस्ट कंसर्न होना चाहिए, आपका फोकस धंधे पे होना चाहिए, और आपको ये डिसाइड करना है कि अभी मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। समटाइम कोई बंदा मुझे बोलता है कि मेरे पास ये बजट, मोरा वर्डप्रेस में बना दे साइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले साइट तो बना। तुझे सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है ना, आपके पास डेटा नहीं होता है। पीपल आता है मुझे साइट बनाना है, महीने में बनाना है, मेरे को तो डेटा का है ना, उनके पास फोटोग्राफ होता है ना, कंटेंट होता है ना, डिटेल्स होता है। 6 महीना तो डिटेल में लगा, तब तक वो मेरे पास डिजाइनिंग बनवाता है, लाल कर, ये पीला कर, ये तो ऊपर ले, ये नीचे ले, बिकॉज उनके पास डेटा नहीं है, वो टाइम वेस्ट कर। तो फोकस ये कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी वेबसाइट पे बना दो जिससे आपका सब डेटा गैदर होता है। या तो अमेज़न पे बना दो, अमेज़न पे A+ कंटेंट डाल दो, आपका जब कंटेंट रेडी हो जाना उस दिन आप वेबसाइट बनाने के लिए रेडी हो, वरना वेबसाइट बनाने के लिए रेडी नहीं हो। तो पहले तो ये चीज चाहिए कि कभी वेबसाइट बनानी चाहिए। देखो मेरे पास आउट है, मैं पैसा मेरे तो इनकम है, कभी नहीं बोलूंगा वेबसाइट मत बनाओ, पर मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ कि आप किस दिन रेडी हो, जिस दिन आपका डेटा रेडी है, आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपका A+ कंटेंट रेडी है, और उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि एक्चुअली वेबसाइट कैसा बनेगा। वरना आप पहले बोलोगे कि ये फोटो डाल के वेबसाइट बनाते नहीं। तो these are the 3-4 core things। कोई भी स्टार्टअप या कोई भी इवन मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी कॉर्पोरेट भी यही चीज तो ध्यान रखती है कि कंटेंट, प्रोडक्ट की नॉलेज और प्रोडक्ट को कैसे दिखाना है, और द मेजर थिंग द वे इज एक्सप्लेन। आप तो अपना यूएसपी पता होना चाहिए, तुझे आप वैसे ही कंटेंट बनाओ। आपको पता है कि आप मंत्रा से का ट्वीट नहीं कर लो, या आपको पता है कि आप 500 वाली कुर्ती से ट्वीट नहीं कर लो, या सी नोस पे वो चांदी बेच रही है, तो उनका कंटेंट वैसे हो जाए, और फिर वो हिसाब से सोशल मीडिया पे जाओ। पब्लिक समझता है सोशल मीडिया पे जाओ, तो सोशल मीडिया पे कोई भी टाइप के वीडियो बनाने चालू करते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो अपनी ब्रांड वैल्यू डाउन कर रहा है। तो यू शुड डू एवरीथिंग व्हाटएवर पीपल से, पर वो आपके स्टोरी के अराउंड होना चाहिए, नहीं कि बस सब लोग बना रहे और हम भी बना के जा रहे, जिससे आपकी वैल्यू डाउन हो रही है, आपका ट्रस्ट जो भी बनाया है या जो भी किया वो टूटना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी बनाओ, ऐसी बनाओ कि एटलीस्ट 3 साल चले। मैं नहीं बोलूंगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने वेबसाइट बनाई 10 साल चलेगी।
टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है एवरी डे, पर एटलीस्ट 3 साल के लिए वो प्रॉपर चले, वो आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, वरना आप री इन्वेस्ट करते जाओगे, फिर आप IT टीम रखोगे और उसमें घुस जाओगे और आप अपना फोकस जो धंधे से वो चेंज होते आप IT में शिफ्ट हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Again, I'm going towards the brands. So, the next question that I would like to understand, Akash, like I got to know from you, कि आप marketplace पे नहीं जाना चाहते हो, plus आपने COD बंद किया हुआ है, आपने no return policy रखी हुई है, तो technically जो लोग बाकी सब कर रहे हैं, उनसे सब अलग कर रहे हो, तो how you have sustained, survived and grown? See, first and foremost, marketplace पे ना जाने का reason is purely because my products are slightly higher side, pricing wise. So marketplace doesn't serve purpose for me. They charge me like 25% of margins, which doesn't help me in any which ways. And my aim, like it's been hardly 3.5 years, my aim is not to crack a 100 CR company. My aim is to grow sustainably with margins. That's my aim. So that's why D2C through my own website and COD we have is that we try and promote to our customers that you go for prepaid. We will give you a 10% off, but go for prepaid. Because COD में बहुत से hidden charges होते हैं for a brand, which बहुत tough होता है अपने product में calculate करना. From courier charges increase हो जाते हैं, अगर उसमें RTO हो जाए तो अलग है, and there are several other things, right? And बहुत बार customer reject कर देता है, because we are at the end we are living in India, so it's tough to solve these problems. And we don't do refunds because, as he said, detailing is important, and we take care of the details to the core. Everything which we mentioned, from the size of the button to the name of the fabric to the color, everything we make sure कि जब बंदे को मिले तो वो वेबसाइट पे जैसे दिख रहा है प्रोडक्ट उससे one notch up मिले. So that makes our life easy. And we have a very strong customer support team. So as soon as someone places an order with us, we call them up, even if it's a prepaid order. We call them up, we discuss about their sizing. We generally ask them. For example, we know that most of the people who shop from us shop from Zara, shop from Marks and Spencer. So उनको अपने Zara की sizing हमेशा याद होती है, and that is what we follow. So our sizing, मतलब our sizing return is hardly 2.5%. That's it, which is industry standards से बहुत lower. So that we have been able to solve. Yeah. So I guess we have one more from the fashion industry, and I would like to know the differentiation, the USP, how you make different from other people, those who are dealing into fashion, and what is the USP, where you build your brand for the same? Sir, USP was quite simple. हम तो सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छा शूट करो, अच्छा वीडियो कंटेंट करो. इंडिया की पब्लिक बहुत इम्पल्सिव वाइब हो गई है आजकल. टीयर 1 सिटीज की जो है इम्पल्सिव वाइब है. कोई भी प्रोडक्ट देखा, क्लिक किया और वो परचेज करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं. अब आप उसी को क्रैक कर लो कि आपका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका देखते ही पसंद आ जाए लोग. तो बस वही है सर. Again, I am having a different categories, तो मैं वापस 2% जो एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किचन वेयर. तो again, it's not that common for going online, और इतना easy नहीं है शायद. और एक और reason देख सकता हूँ, अगर आज मैंने किचन नया रेडी किया है, तो today I need that products, but अब next time मैं कब buy करूँगा वो मुझे नहीं मालूम है. So it's not that easy to have a repeat orders or recurring orders. तो आप वो चैलेंज कैसे डील कर रहे हो, या आपके लिए आपकी यूएसपी कहाँ पे है? How you started this category? ये ट्रेंड चेंज हो रहा है. अब ऐसा नहीं है कि कोई एक सेट खरीदी है तो उसको सालों साल चलाएंगे और जब वो टूटेगा तभी दूसरा लेना है. जैसे इन्होंने बोला इम्पल्सिव बाइंग काफ़ी हो गई, तो ऑनलाइन अगर कोई कंटेंट किसी को बहुत बढ़िया लगता है और पसंद आ रहा है तो फिर उनके पास घर में चाहे एक्स्ट्रा हो लेकिन वो उसको खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं. दूसरा चीज़, ऑनलाइन कंटेंट की वजह से क्या हो रहा है कि आजकल रेस्टोरेंट्स के वीडियोस, फूड के वीडियोस, हम सब ने कोरोना में देखा कि सब शेफ बन गए हैं. सबको क्रॉकरी चाहिए घर पे, सबको सजा के प्लेटर बनाना है, तो वो कौन देगा? वो हम देंगे. तो ये सारी चीज़ें जो पहले बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी मासेस को, वो हमने स्टार्ट किया वहाँ पे प्रोवाइड कराना. फर्स्ट मूवर एडवांटेज ज़रूर था इसमें कि एक लेवरेज मिला हमें. ऑफलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है,
तो एक वो कनेक्शन और डीप हुआ लोगों का कि ऑफलाइन स्टोर्स में भी दिख रहा है, मॉडर्न ट्रेड में भी दिख रहा है और अब ऑनलाइन भी कंटेंट मिल रहा है। तो वहाँ से वो चीज़ें लोगों की एक्सेप्टेंस आने लग गई है एंड ये चैलेंज नहीं लगता हमें है कि सेल कैसे आएगी, रिपीट कस्टमर ऑर्डर कैसे आए। इनफैक्ट हमारा कस्टमर रिपीट ऑर्डर ज़्यादा है, सो दैट इज नॉट अ चैलेंज। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, जो आपने दिखाया वो एज इट इज कस्टमर को मिले। जैसे सर बोल रहे हैं कि उस पर वर्क होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर इसको रिटर्न नहीं करे। वो सारे क्वेश्चंस को टिक लगाने हैं आपको कि कस्टमर रिटर्न क्यों कर सकता है, तो मुझे ये भी सॉल्व करना है, ये भी आंसर देना है, ये भी आंसर देना है। उसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड आपने वो कंटेंट में प्रोवाइड करा दिया, तो आपने अपना ही खर्चा बचाया। तो इस पे वर्क करते रहेंगे तो आई थिंक कोई भी कैटेगरी हमारी या कोई भी कैटेगरी में हो सकता है। Anushree, you also had one word, beautiful kitchens. So certainly I would like to emphasize on that. आपका क्वेश्चन ये था कि ये कैटेगरी में रिपीट नहीं है। I mean, the way we see as an outside of the world, right? हमने वहाँ पे आपने हाथ डाले हुए हैं, so you know the things. So what we see कि ये कैटेगरी के बिजनेस है जो different कैटेगरी है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस से थोड़ा हटके है, तो वहाँ पे कैसे मैनेज होता है या how you enter in it, how you overcome those things and what helps you to build this business to the next level. दो चीजें बहुत कॉमन हो गई इंडिया में, लाइफस्टाइल बदल गई है। हमारे फैमिली प्रोडक्ट्स अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होते जा रहे हैं। एग्जांपल, पहले घर पे पानी की बोतल पूरी फैमिली के लिए अगर 4 जने रह रहे हैं तो 4 या 5 बोतल होती थी घर। अब ऐसा नहीं। अब एक बंदे को जिम की अलग बोतल चाहिए, घर पे रहेगा अलग चाहिए, अगर वो गलती से ऑफिस जाता है उसको कैरी करनी तो वो अलग चाहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कंज्यूमर चाहता क्या है, बोल क्या रहा है और कैटेगरी क्या है। सेकंड, मतलब आपने राइटली बोला, हमारी कैटेगरी इंपल्स नहीं है और बिल्कुल भी इंपल्स नहीं है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे साथ। कितना ही दिखा लो, कितना ही कुछ कर लो, एकदम से खरीदने चले जाए जैसे फैशन की तरह जाता है या फिर उसमें, वो नहीं है। उसका दूसरा तरीका क्या होता है कि इंपल्स नहीं तो यार इसको अपग्रेड करो। अब अपग्रेड के लिए क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर पे जाओ। हेल्थ चाहिए मेरे को, तो हेल्थ चाहिए तो भैया प्लास्टिक को बाहर निकालो, ग्लास को अंदर लेके आओ। मेरे को चाइनीज प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो ठीक है भाई, तू हिंदुस्तान की मिट्टी के बने हुए कप्स सॉसेस डिनर वेट के प्रोडक्ट्स ले, उस पे थोड़ा ब्यूटी का तड़का मारो। सो बेसिकली यार दो ही चीजें हैं। अगर आपके पास इंपल्स नहीं है, आपकी कैटेगरी का बिहेवियर अगर एकदम से इंपल्स नहीं है, तो आप उसको अपग्रेड करो। क्योंकि ये हमारी वाली कैटेगरी प्रॉब्लम क्या है, किचन अगर 200 स्क्वायर फीट की है ना एक घर में, तो वो 250 स्क्वायर फीट की कभी नहीं होगी। वार्डरोब में कपड़े आते जाते रहेंगे। किचन में जो किचन का ओनर है ना, आज भी हम सब बैठे हैं, हमारे में से किसी की हिम्मत नहीं है हम किचन में से आके कोई आइटम उठाए बोले ये फेंकना है, हम चेंज करेंगे। मतलब किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे। जो ओनर है ना किचन का, जो भी संभाल रहा है, whomsoever it is, मेल फीमेल जो भी है, भैया उससे पूछना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट अंदर घुसेगा, और उससे पहले वो आपसे वो सवाल पूछेगा, भैया बाहर क्या लेके जा रहा है, जगह नहीं है मेरे पास। तो कैटेगरी की प्रॉब्लम को समझो, या तो अपग्रेड करा के पुराने प्रोडक्ट को बाहर निकालो, या फिर दूसरी चीज है उसको ये समझो कि भैया ट्रेंड नहीं चल रहा, आपके पास जो है ना आप बहुत पिछड़े हुए हो। जब आपका गेस्ट आएगा ना, उसको ये लगेगा आपने क्या रखा है। मतलब 5 करोड़ के घर में आपने प्लास्टिक के ग्लास लग रखे हैं, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई तू गलत कर। तो आपको साइकी पे हिट करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट से ज्यादा साइकी को हिट करते रहो, तो कस्टमर धीरे धीरे करके अपग्रेडेशन हो जाता है। Through the platform you give the option to everyone कि कैसे आपको चेंज करना है, क्या करना चाहिए, एंड चेंज करके फिर उनकी साइट पे जाके वापस से आगे वर्क करना है। Everyone please visit Filmora and buy something यार, अपग्रेड करो अपने आप। लाइक फॉलो कमेंट शेयर जो भी कर सकते हैं वो सब कर दो यार। So we have again a similar kind of different category for other two people, which is not that traditional. So one is dealing in the silver and the other is dealing with the pregnancy and post-pregnancy period. तो again वो भी category ऐसे है कि we are not buying every day, या साल में उतनी ज़्यादा time buy नहीं करेंगे. And when we talk about pregnancy, वो तो life में once or twice वाला case है. So how did you find that USP? What is your secret sauce behind the success story, and how do you like to put that?
And certainly, I have one more question for you. What is the journey before the Shark Tank and after the Shark Tank? I'm sure everyone wants to know about that. So coming to your first question, what our mood is, yeah, हम कैसे हैं? तो obviously that was one challenge कि एक customer journey छोटी है, plus it's a very sensitive time of their life, जो मतलब everything जो घर के procedures हैं उसमें ही बहुत ज़्यादा control किया जाता है, तो obviously there's a very high chance कि outer products को इतना नहीं करेंगे. But having said that, I believe हमारा जो movement रहा है, the brand, the positioning has been somewhat like we act as a motherly figure around it. तो हम basically हमारा target नहीं है जो tier 2, tier 3 cities में joint families में अपने साथ रहते हैं. We actually target people who are living alone, who do not have support of their mothers or grandmothers, or people नानी दादी का support नहीं है, या कोई nobody to take care of them. So we act as someone who's coming in and substituting that area of their life. Also, I believe to start it was very difficult. ये product, I can assure that मैंने बहुत research किया ये product. I believe we are still the largest one selling pregnancy nutrition products, and we were the first one, in fact, to start it across the country. बहुत लोग पूछते थे कि यार ये कैसे काम करेगा, इतना छोटा मार्जिन है, वो है, बहुत लोग घर में ही बनाते हैं, आप कैसे करोगे? तो मेरा अल्टीमेटली एक साइड था कि यार आज से 40 साल पहले अचार भी घर में बनता था, और सब निलॉन्स और मदर्स को भी ये कहते थे क्या बेच दो, look at the $1 billion growth story they have. So similarly, over the time, there are people who will not know how to make these things or make this thing at the correct status and correct level of it. वो चीज हम कर पाए तो that changed our game for us. How about Shark Tank? Shark Tank, yeah. So Shark Tank में भी I believe बहुत ही it was a very wonderful experience to say the least. हमने apply किया था Shark Tank के लिए on the very first season, and by far उस समय we were the first company from first startup from Rajasthan to feature in the show. Just कहानी तो बहुत लंबी है, उसके 6-8 months का procedure होता है, there are multiple rounds, clearances and all those things. So I'll tell you what the effect of Shark Tank is rather than what we did to get in there. वो आपको बहुत लोगों का है. Effect it generally actually helps you get an insight कि हाँ काम कैसे होता है. तो before Shark Tank एक reference के लिए जो हमारा annual turnover था, immediately after Shark Tank वो हमारा weekly turnover था. तो imagine the growth that we had, and फिर suddenly once you start growing on scale, आप उसको देखने लगते हो कि यार ये चीजें हो रही है ना, तो obviously you start manufacturing solutions around it. एक होता है कि आप ऑर्गेनिकली धीरे धीरे बढ़ रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम एक आएगी, उसको सॉल्व करोगे, फिर हर्डल नेक्स्ट पे बढ़ोगे. हमारे पास तो ऐसा हुआ कि किसी ने बोरी भर के हर्डल हमारे ऊपर डाल दिए. तो we featured in I think around Jan और अक्टूबर तक तो हमें ये नहीं पता था हम कर क्या रहे हैं. I guess this kind of hurdles are always good. Yeah, in due course. In hindsight, I would say it was a good strategy for us as well. Made us what we are today, to say the least. Awesome. Nasta. So, the question of the USP. Yes. How you made that differentiation to work for your business, and what is the, where you find like what make you succeed in your journey, being a different in the different category. Correct. See, jewelry. When I am selling or I am making a pure silver product, I always, try to make it a timeless piece which you can pass on to generations. आप सालों साल रखो, आप वो एक अलग ही फीलिंग होती है, बिकॉज वो एक ऐसा मेटल आइटम नहीं कि ठीक है खराब हो गया, सिल्वर है तो उसकी क्राफ्टिंग आप जितनी अच्छी करोगे, ज्वेलरी की डिजाइनिंग जितनी अच्छी करोगे, उतना मजा आएगा और उतना अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा. अब बस सवाल ये है कि ऑनलाइन स्पेस में उतना ट्रैक्शन कैसे मिलेगा. ब्रिक एंड मोर्टार में तो
टच एंड फील होता है, आप समझा सकते हो जी कारीगर ने इतने घंटे बनाए, ये लगाए, ये किया है, एंड पीपल आर अट्रैक्टेड। सो ऑनलाइन स्पेस में इसी चीज को हमने वो डिजाइनिंग और उसको दिखाना ही सबसे बड़ा यूएसपी है हमारी ब्रांड का। हम जिस तरीके से उसको शोकेस कर रहे हैं, जितनी डिटेलिंग के साथ उसको दिखा रहे हैं, हर प्रोडक्ट की एक स्टोरी है। हर प्रोडक्ट की जब डिजाइनिंग होती है तो उसके वो एक स्टोरी के बेस पे होती है, उस पे एक बहुत लंबा आइडिएशन होता है, उसके बाद बहुत सारे सैंपल्स बनते हैं, उसके बाद वो अप्रूव होता है, उसके बाद उसकी लॉन्चिंग होती है। तो मैं कहूँगी शायद का प्रोडक्ट ही एक एक्सपीरियंस है लोगों के, जो हम क्रिएट करना चाहते हैं और जो हम देख भी रहे हैं। वी आर सीइंग दैट काइंड ऑफ ट्रैक्शन। दूसरी बात ये है कि हमने ये चीज भी क्रैक की है। मैं समझती हूँ पहली बार में आप 10,000 का नेकलेस तो नहीं खरीदोगे ना, मतलब यू नीड टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट इन द ब्रांड। तो हमने हमारी प्राइस रेंज को 1000 से 30,000 इतने ब्रॉड प्राइस रेंज में हम काम कर रहे हैं। और पॉसिबल है ज्वेलरी में आप मिनिमलिस्ट बनाओ, ग्रैंड बनाओ, इतनी सारी कैटेगरीज है। और आपने ये ना एक इमोशनल क्वेश्चन होता है जिसको आपने अगर टच कर लिया when it comes to women और even in the males gifting purpose के लिए एक बहुत बड़ा segment है ये। And we are also working on the men's jewelry these days. It's a huge trend thanks to the Bollywood industry जिसने especially silver को तो बहुत अच्छा there's a good trend which is going on. And as a brand मुझे लगता है मतलब ये मत सोचो कि यार ये चल रहा है तो ये करना है, ये नहीं चल रहा तो ये नहीं कर सकते। ट्रेंड सेट करो ना, इतना बड़ा स्पेस है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप अपने प्रोडक्ट पे दिमाग लगाओ और ट्रेंड खुद ही सेट करो। आप you be the trend setter and you see that your product is being featured in the in the magazines or on the Bollywood celebrities etc. We have done that. You'll see Madhuri Dixit adorning child. You'll see I have celebrities who are wearing child. We also have a client from the film industry. हमने थोड़ी सोचा था जब स्टार्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहली बार तो आप डिजाइनिंग भी नहीं कर सकते, आपके एमक्यूज होते हैं, आप 50 यूनिट कैसे बना लोगे। तो आप अपना दिमाग वो इसी चीज को हमने यूएसपी बनाया है। मेरा मतलब सादा फोकस ही, और मैं ये कहूँगी आप सिर्फ एक ठीक है योर यूएसपी बनाए कॉल राइट, ठीक है आवर यूएसपीज आर डिजाइनिंग एंड हाउ वी आर पोर्ट्रेइंग 350,000 का फॉलोअर बेस इंस्टाग्राम पे, ऑथेंटिक, we've never bought it, we've never tried to grab that was short term success वाला ट्रायल हमने नहीं मारा इंस्टाग्राम पे, and we see that kind of traction on the handle। तो ये सब चीजों के साथ मेरे को लगता है पूरे I repeat it again, मैंने पहले भी बोला, पूरे फनल में हर टच पॉइंट अगर आप D2C ब्रांड में हो, आपको हर पॉइंट को ही मतलब हर पॉइंट पे बेस्ट होना पड़ेगा तो ही आप सक्सीड हो। आपने एक्सपीरियंस खराब कर दिया या आपने प्रोडक्ट खराब कर दिया, आपने दिखा गलत दिया, प्रोडक्ट खराब कर दिया, दिखा गलत दिया, तो आपको वैसे ही डेड हो। और आपने अगर उसको बेच भी दिया, आपने एक्सपीरियंस खराब कर दिया पोस्ट परचेज, तो आपकी रिपीट रेट कुछ नहीं। बीइंग अ ज्वेलरी ब्रांड हम एकदम नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी है हमारी, और जो रेयर है इंडस्ट्री में। और उसके बाद भी हमारा जो रिटर्न रेट चल रहा है वो 1.5% है, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। सो ये क्यों? क्योंकि हम हर पॉइंट को ही टच कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कहीं भी कोई वॉइड ना आए, कहीं भी हम वो इशू ना क्रिएट करें। सो दिस इज व्हाट आई से, यूएसपी तो बनाओ लेकिन हर चीज हर पॉइंट को ही अगर बेस्ट कर लोगे ना तो रुकेंगे तो नहीं है। And we can make it a sustainable business model. Great. So, Tejas, brands are making e-commerce website, but I guess the backbone is always in your hand. So, how you help them? How you define? Everyone has a different type of need. अलग-अलग लोग अलग-अलग business कर रहे हैं, तो हर एक के लिए क्या differentiation होता है? And how you help them with the use of technology? So basically इनका आंसर मैं दूँ,
दिन अराउंड द ग्लोब। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जैसे सेकंड पार्ट आता है, पहला पार्ट आता है कि अंडरस्टैंड, हमें उनके साथ बैठ के अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि क्या चाहिए। जैसे अभी मैं इनसे टेंडर से बात कर रहा था, तो जैसे वो शॉपिफाई पे वेबसाइट भेज रहे हैं, नाउ दे वांट टू लॉन्च अ स्टोर इन फ्यूचर, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज सेकेंडरी पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये होता है कि हम मर्चेंट के साथ बैठ के उनका विजन समझते हैं कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। टेक्नोलॉजी ना इट्स अ टूल। हमने टेक्नोलॉजी को भगवान बना दिया, जो सबसे बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। मैंने मेरे को टेक्नोलॉजी पता हो, पर हमने टेक्नोलॉजी पे ही जीना चालू कर दिया, जबकि टेक्नोलॉजी को यूज एज अ टूल। हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए सब करना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला टच पॉइंट, तो टच पॉइंट में टेक्नोलॉजी से टच पॉइंट दे पाएगा, बट टच पॉइंट पे मैसेज क्या डालना वो तो इन्हें डिफाइन करना। प्रोडक्ट डेटा डालना टेक्नोलॉजी पे, पर प्रोडक्ट में डेटा क्या डालना वो तो उन पे डिफाइन करना। तो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अ टूल एंड इट कैन बी यूज्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट। और इसके लिए जैसे मैं समझ आता है कि आई डोंट नो स्टिल इन इंडिया पीपल डोंट प्रेफर अ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। जैसे आप जब लीगल के लिए जाते हो तो आप एडवाइस लेते हो। अभी हमारे पास वेबसाइट कैसे बनती है कि किसी और को पूछा, अरे ये सॉफ्टवेयर बना है इतने फूको में, चलो हम भी बना लें। They don't understand first their business, they don't understand what their vision, क्या उनको क्या अचीव करना है। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है इंडिया में, भाव कितना है। मतलब they always talk about भाव, फिर मेरे को ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट का भाव कितना है। So they have to understand कि टेक्नोलॉजी कॉस्ट के साथ आती है और हर चीज का पैसा लगता है, और टेक्नोलॉजी सबसे कॉस्टलीस्ट है। तो देखो there are people come to us कि मुझे वेबसाइट बनानी, Amazon जैसी बनानी। When I ask question बजट कितना है, तो बोलते हैं 50,000। मुझे लगता है मुझे उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए, मतलब व्हाट यू आर टॉकिंग। तो यहाँ पे ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। यू टू एक्सप्लोर विद द मेनी पीपल। जैसे आपके रिलेवेंट ब्रांड है, आप उनसे समझिए कि वो क्या कर रहे हैं। Amazon पे बेच रहे हैं, दिस ऑल आर टेक्नोलॉजी। वेबसाइट इज वन ऑफ अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस चला रहे हो, आप वेबसाइट नहीं बना रहे। आपके बिजनेस में परचेज करना, सेल करना, डिलीवरी करना, टेक्नोलॉजी बहुत छोटा सा पार्ट होता है मेरे हिसाब से। वेबसाइट इज ओनली अ 2%, वो सिर्फ सेल्स चैनल है एडिशनल, उठते नहीं होता है बिजनेस। वेबसाइट के ज्यादा आपका जो पूरा ऑपरेशन है, हर चीज आपका, जैसे हर एक टच पॉइंट पे आपके आंसर देखो। तो टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व प्रॉब्लम वंस यू आर क्लियर विद इट। फिर मैं आपको हायर चीज भी दे सकता हूँ, सेल्सफोर्स भी दे सकता हूँ, जो सीआरएम भी दे सकता हूँ, और छोटे सीआरएम भी दे सकता हूँ। और व्हेन यू आर क्लियर, वी कैन सजेस्ट you what exactly will work for you as of now। 10 करोड़ का पे आप ये यूज कर लो, when you reach 1000 करोड़ you have to go for Salesforce। फिर आप नहीं बोल सकते नहीं मैं इससे चला लूंगा। फिर माइट भी Shopify में बना रहे हो, you have to shift to Salesforce और Sales e-commerce, क्योंकि everything have their demand। या आपको कस्टमाइज विजन तो बनाना पड़ेगा, या तो खुद का कस्टम प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। It's totally depend upon where you reach, what stage you reach and how much you want to invest। Thank you. Thank you everyone. So I guess we are running out of time. Just to summarize, like what I have understood from all of you, product is super important. आपको कुछ भी बेचना है, सबसे पहले focus on your product, the detailing of the product when you are putting it online. So make sure आप जो बोल रहे हो वही बेच रहे हो. Then pricing, understand about your plan and the promotion. That's 4P. I would say that is more important. So yeah, thank you everyone, and I'm making this open for the Q&A. Yeah. First of all, उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां हम लोग से मिल सके। My question is to audience, to speaker and third with Unilever। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये मैं पहले बताता हूँ। आई एम हैंडलिंग अ ब्रांड जिसके पास 2000 ऑर्डर डेली का वॉल्यूम है। अब 2000 ब्रांड स्टार्ट होता है, 100 ऑर्डर, 200 ऑर्डर, 500 ऑर्डर, सब कुछ चलेगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्केल, तब तीनों को चैलेंजेस हैं। कस्टमर्स हैं, कस्टमर ने आज ऑर्डर किया, उसको कल चाहिए, उसको जितना जल्दी प्रोडक्ट घर पहुंचा उसको वो चाहिए। वी आर सिटिंग इन राजस्थान, somebody is ordering from कर्नाटका, तो एक दिन में नहीं पहुंचा, ठीक है। ब्रांड्स को भी 2000 ऑर्डर अच्छे लगते हैं। अब वो 2000 ऑर्डर लाने का फॉर्मूला क्या है कि आपको मार्केट प्लेसेस पे जाना है, आपको मार्केट प्लेसेस के वेयर हाउसेस में जाना है।
Now we are going into marketplaces warehouse. आज हमारे पास सेंट्रलाइज इन्वेंटरी 1 लाख पीस की है। मार्केट ऑर्डर्स अच्छे लग रहे हैं, सडनली क्या होता है कोई प्रोडक्ट चल रहा होता है अच्छा और वो ड्रॉप होता है। तो माय क्वेश्चन इज फ्रॉम स्पीकर्स कि उसका क्या करें? लाइक वो ऑनलाइन उसका करियर खत्म हो गया, जिनके 100 प्रोडक्ट बेच रहे थे, हमने मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी खासी करवा दी, बट वो प्रोडक्ट स्टॉप हो गए। सेकंड माय क्वेश्चन इज टू यूनिकॉमर्स कि आप कह रहे हैं कि हम सेंट्रलाइज इन्वेंटरी मैनेज करते हैं, बट उस इन्वेंटरी में FBA, SJIT या जो भी हम बाहर SOR मॉडल पे इन्वेंटरी रखते हैं उसका डेटा यूनिकॉमर्स से हमें नहीं मिलता। तो दैट इज अवर लाइक 1 लाख पीस हमारा सेंट्रलाइज इन्वेंटरी है, 40,000 हमारा वो होगा। अब वो 40,000 सारे चैनल पे एक्सपोज भी नहीं होगा, वो अगर मिंत्रा का है तो सिर्फ मिंत्रा के पास है। तो इस केस कंडीशन में ब्रांड्स क्या कर रहे हैं और यूनिकॉमर्स क्या कर रहे हैं? हाँ सर, ऐड टेक इट अप। ब्रांड्स का अगर कोई बताना चाहे चलो। सर आप कौन सी कैटेगरी में? सर फैशन, अपीयरेंस। फैशन में से कोई लेना चाहता हूं? So मैं एक चीज मेरा बता देता हूँ एक्सपीरियंस। मैंने 2014 से 19 में आपके से किया था। अब देखो यार, दो चीजें। पहला प्रॉब्लम आपने बोला SKU की लाइफ, जिससे डिमांड सप्लाई का प्रोजेक्शन मुझे नहीं पता लगता, मेरा पैसा कितना जा रहा है वो तो अंधा ही हो जाता है मार्केटप्लेस। सेकंड, किसी को दे दिया तो वो राशनिंग सही है नहीं है। सर आप कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल की होता है, मार्केटप्लेस की आदत है आपके पहले SKU की लाइफ होती थी 14 महीने, 12 महीने, 6 महीने, वो 3 महीने पे आ गई। अब 2 महीने में आने वाली है। उसमें होता क्या है, आपके प्रोडक्ट की कमोडिटी, मतलब आपके प्रोडक्ट को कमोडिटी बना के इस कदर बेचते हैं कि आप कहीं के नहीं रहते। ये शायद यहाँ सब एक्सपीरियंस है। तो सिंपल है सर, हम लोग भी मतलब जो देखा है मैंने और जो आगे बढ़ा है इसमें, सर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट इस क्वार्टर में 100 SKU का बैच क्रिटिकल है, तो अगले क्वार्टर में कल को 150 करते हो तो 150 में से 100 में से माइनस कितने होते हैं, उसकी जगह रिप्लेस कितने होते हैं। इन्वेंट्री उसी के प्रोपोर्शन में जाएगी और मैनेज होगी। हम सोचे कि 25,000 डाल दी ये खा जाएगा, सर ये ध्यान रखना आपके साथ 200 लोग आपको और देख रहे हैं, उसमें से 10 हाथी ऐसे हैं जो कमाने के लिए बैठे नहीं है, बाकी जो 40 हाथी बैठे हैं वो सिर्फ ब्रांड की पोजीशन लेवल बनाने के लिए है। तो जवाब तो सर इसका थोड़ा सिंपल है, ट्रैकिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए और हम कितनी रिस्क किस SKU पे मार रहे हैं ये हमें बहुत विजिबल होना चाहिए कि यार एक SKU मेरे महीने का 10 लाख का धंधा दे रहा है, तो 10 SKU एफिशिएंटली 1 करोड़ का धंधा दे रहे हैं। 1 करोड़ के बढ़ते हुए मैंने सपोज 30 लाख या 40 लाख की कॉस्ट मेंटेन करी, तो मेरी कैपेसिटी कितनी है पीछे वर्किंग कैपिटल की कि वो मतलब उसको झेल जाए, ताकि कल को बंद भी होता है तो मैं थ्रो अवे प्राइसेस पे काटा, बाजार से बाहर निकला, खत्म। तो वो आपको अपनी MIS टीम में पीछे बैठानी पड़ेगी और आपको अपने से ज्यादा ना दुनिया पे फोकस करना पड़ेगा। स्पेशली जो कमोडिटी बना देते हैं ब्रांड्स, स्पेशली जो मार्केटप्लेस जिनके खुद के ब्रांड्स हैं, जो आपको कमोडिटी या आपकी विजिबिलिटी को सप्रेस करते हैं। इसमें से बहुत बेसिक होता है, अगर आप किसी भी कैटेगरी के किसी भी प्राइस पॉइंट के थ्रेशोल्ड में मोर देन 20% आप एक्यूमुलेट करने लग जाते हो ना मार्केटप्लेस पे, वो आपको जीने नहीं देगा। मैं आपको मतलब बहुत रिचलेसली बोल रहा हूँ, जीने नहीं देगा। तो आपको ट्रैकर बनाना पड़ेगा सर, 100 पे क्या चल रहा है, कब इसको बंद करना है। एंट्री से ज्यादा धंधे में बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, एंट्री से ज्यादा एग्जिट पता होनी चाहिए हमें। तो भैया हमें पता होना चाहिए कि भैया इसकी सांसें बढ़ने वाली है, ये जो 10 लाख का SKU है ना, ये दिख गया 8 पे आ गया, थोड़े टाइम पे 4 पे आ जाएगा, तो मुझे पता है कि 10 को 10 वाले से रिप्लेस करना, 10 को 4 तक लाके या तो ऐसी प्राइस कर दो कि सामने वाला हाथ पे हाथ धरे सोचते रह जाए कि कर कैसे है। और हमें पता है कि भैया मैं लॉस भुगत रहा हूँ, लेकिन तो दुनिया में बोल रहा हूँ मैं तो कमाई कर रहा हूँ। बेसिकली स्टॉप लॉस लगा रहे हैं उसके पीछे 100% सर। आप चेंज नहीं करोगे अपने आप को तो भी मरोगे आप। मतलब आप पता है मुझे क्या बोल रहे हो कि भैया मैं चेंज करना नहीं चाहता, एक SKU बोला मैं तो भैया 24 महीने चलते रहे, 10 लाख 15 हो जाए 20 हो जाए, सर ई कॉमर्स अब वो नहीं रहा। सेकंड, इन्वेंट्री इज मोर ऑफ फाइनेंशियली साउंड। कितने हुआ 100 रुपए जेब के इन्वेंट्री पे कितने गए, मार्केट प्लेस के कमीशन या फिर उसके ऊपर जो टॉप अप किया एड्स का वहां कितना खाया। थर्डली, मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी चर्निंग है एनपी से पहले, टैक्सेशन से पहले, टीडीएस भी काट दिया, जीएसटी भी गया इधर उधर, पैसा एक्चुअल में कितना SKU दे रहा है। 10 लाख में से माना 2 लाख रुपए, मतलब लाख रुपए बचे मेरे 10% में से 4% मेरा हो गया ऊपर का खर्चा, जो भी रिटर्न ये वो। मेरे पास समझ में आ गया भैया इकोनॉमिक्स
60,000 पे आ गई। अब 60,000 पे मुझे पता है कि कितनी रोलिंग करनी है, तो 60,000 पे मैं 10 लाख की रिस्क खेलूं या 6 लाख की खेलूं। तो सर ये राशनिंग आपको करनी पड़ेगी और आपकी 100 रुपए की जेब कंपाउंडली कितनी बढ़ती है, आपको ये मतलब गणित खुद से ही क्वार्टरली क्लोज करके जमानी पड़ेगी कि मेरा धंधा कोई एसक्यू खा रहा है तो 100 रुपए में से कौन कितनी बकेट पे खा रहा है। तो मतलब मैं आपको यही बोलूंगा इन शॉर्ट, ये आपकी दुनिया में सबकी प्रॉब्लम है, छोटा बड़ा नाटा सब, सॉल्यूशन एक ही है, अपने से ज्यादा अपने कंपटीशन को देखो। मार्केट प्लेस पे तो भैया अमेज़न बेसिक, सोलिमो, फलाना जो भी है उनको बहुत ट्राई करो, क्योंकि उनको आपसे ज्यादा पता है, परचेजिंग पावर भी ज्यादा है, वो तोड़ भी सकते हैं बाजार में किसी को, आप नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, मैं भी नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, आई विल टेक दैट ऑन माय केस। एंड देन देयर आर बिग ब्रांड्स अपनी उसको बोलते हैं कि अपनी मैं रिलेवेंट रहूं बाजार में, मेरी रेलेवेंसी कोई खत्म कर रहा है तो भैया मैं तो वो बना के लाऊंगा, रिलेवेंट रहूंगा, प्राइस सब बाढ़ में गई, मेरी जो फैक्टर है वो रेलेवेंस है, आपका फैक्टर है एबिटा, तो आप दोनों के फैक्टर ये लोग, कंपटीशन ये लोग, तो ट्रैकर रखो अपने आप को, माइंडसेट पे, फिगर्स पे खेलो कि ये हो रहा है, और एंट्री से ज्यादा बॉस एग्जिट। अगर आप फास्ट हो ना अपने चेंज में, आई बेट यू आपको पकड़ने वाला बहुत स्लो होगा। एंड एग्जांपल मैं जिसको फॉलो करता हूं, एटमबर्ग इज वन ऑफ द finest brand who is selling 3x of the marketplace ASP। अगर पंखा 1400 को बेच रहा है ना, तो वो 2800 का बेचता है, और 2800 का बेचने के बाद भी सेल्स रैंक 1 रहती है, बाजार में माल 2x ऑफ द लेगेसी ब्रांड्स बेचता है, प्राइस भी अब्सॉर्ब करी, बाजार भी लिया और मार्जिन भी कमाया, बट उसको पता है कौन ऊपर जाएगा फिर कौन नीचे जाएगा, एंड दैट you should do। I will give answer not from private, give answer from experience जो हम working with the brand। उनका नाम नहीं दूंगा, उनका नॉर्मल मैथमेटिक्स ये होता है कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 4 होना चाहिए, इट इंक्लूड्स इन एवरीथिंग ना, आपका जो भी कॉस्ट, तो उनको मुझे भी 25% माल बेचना है मेरा कोड कवर करने के लिए। अगर 50% बेच दिया तो बहुत है, और उसके बाद तो मैं 50 रुपए में बेच दूंगा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, वो क्वांटिटी पहले से ही लिमिटेड बनाते हैं, उनका पहले से फिक्स हो जाता है, जैसे आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यू नो इतनी क्वांटिटी पे माल जाना चाहिए, इतने बाद स्टॉक हो जाता है। अगर ये एमआई आपके पास नहीं है तो इसमें यू आर समवेयर रॉन्ग। उनको पता है जब ओके थे मैं 100 माल बेच सकता था, मैंने 80 बेचना, आई एम ओके विद, मुझे वो 20 की लागत में ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है, तुझे वो प्रोडक्शन से रिपल इफेक्ट है, उतना मेरा पैसा ब्लॉक होता है, टाइम ब्लॉक होता है, सब कुछ ब्लॉक है। तो एक बार मैं 100 की जगह पे 80 बेचूंगा वो चलेगा, पर 20 का तो मैं पैसा ब्लॉक कर रहा हूं ना, वो मैथमेटिक्स बहुत बड़ा है। ओके, तो बड़ी ब्रांड ऐसे कैलकुलेट करती, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ऑर्डर करती, जैसे 50-60% बंद हो गया ना। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छी करा, बड़ी ब्रांड जो है ना वो माल बेचने के लिए अमेज़न पे नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए वी आर अवेलेबल, तो उनका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंड जाता है। अगर आपको वैकेंसी पढ़ते हो शेयर मार्केट में, तो ये सब एक्सपेंडिचर जो उनका लॉस परचेज जो भी होता है ना, वो डायरेक्ट टू मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, उनके पीएनएल में वो इंपैक्ट नहीं करता है, और वो हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि हम पब्लिक पैसे पे धंधा नहीं करते, हम अपने पैसे पे धंधा करते हैं, तो हमें वो समझना चाहिए। ओके, थैंक यू। Regarding e-commerce, I would like to take that. Can you please repeat this question, sir? जो इन्वेंट्री फॉर सपोज फ्लिपकार्ट का एफबी हो गया, मिंत्रा का एसजेआईटी हो गया, इस टाइप से हमने एसओआर पे भेज रखा है, दैट इन्वेंट्री कांट बी एक्सपोज्ड इन यहाँ का जो वेयरहाउस है हमारा, तो वो इन्वेंट्री हमारा ब्लॉक हो गया, वो सेंट्रलाइज नहीं है, तो वी हैव टू मेंटेन सेपरेट इन्वेंट्री फाइल फॉर सेंट्रलाइज वन और फॉर द एसजे, तो उसका कुछ एक्सपोजर का। Sure, sir. So again, every company, every organization is having a strategy, right? जैसे कि हमारी आपकी एक स्ट्रैटेजी है, ब्रांड की एक स्ट्रैटेजी है, आपकी एक स्ट्रैटेजी है, सिमिलरली मार्केट प्लेस की भी अपनी स्ट्रैटेजी है, राइट? Every exposure and every data point or every touch point they are not going to expose it to us. तो वो क्या कहते हैं? They have given us as limited access. अब यहाँ पे it is depending upon the seller कि आप उनकी बातों में कैसे आते हो, कैसे पकड़ते हो। FBA और for that matter fulfillment centers पे फिर भी हमारे पास कंट्रोल है। They give us the data कि इतना इन्वेंट्री थी, इतना बिक गया, इतना बचा, इतना अंदर है, वो तो हम आपको एक्सेस दे पाएंगे। अब if you are going for outright model, SOR model, वहाँ पे things run on a PO basis. We consider वो भी डेटा हमारे पास है, we consider that PO
एज एन ऑर्डर और वो हमारे यहाँ दिखेगा, बट डेटा उतना ही दिखेगा जितने का वो एक्सेस हमको देंगे, जहाँ पे वो रोकेंगे वहाँ रुकना है। The answer to this question is it's always better to go for a dropship model because there you have a full command on the inventory, there you have a full command on the visibility, there you have a full command on your product, कब वापस लेना है कब देना है। Now point 2, fulfillment में so let me be in the limelight, मुझे अच्छा लगता है और उसकी के पीछे। So the point is it is highly advisable कि भाई instead of going for, so I'm not demeaning anything or I'm not de-promoting anything. If I would be a seller, this is my say कि I would have gone for the 3 clear partners जिनके common warehouse में आप माल रखो और वही Amazon का निकाल दें, वही Meesho का निकाल दें, वही Flipkart का निकाल दें, वही आपकी वेबसाइट का निकाल दें। That is a better approach of doing it because आपकी इन्वेंटरी ड्रॉप नहीं होती। आपको अगर ट्रेडर को देना है वहीं से दे दो, डिस्ट्रीब्यूटर को देना है वहीं से दे दो, सप्लायर को देना है वहीं से, सोशल कॉमर्स का भी ऑर्डर वहीं से। गो फॉर मल्टी जीएसटी, मल्टी स्टेट के जीएसटी ले लो। छोटे छोटे या इवन लार्जर प्लेयर्स जिनके 3PL 4PL सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके वेयरहाउस में माल रखो और वहीं से डिस्पैच करो सो दैट आप यू आर एबल टू बीट द कंपटीशन बाय हैविंग अ क्विक डिलीवरी विद इन 24 आवर्स बिकॉज़ आपका उस सिटी में है। गो फॉर डार्क स्टोर्स कि भैया सेम डे डिलीवरी लो, सुबह ऑर्डर करो शाम को लो, गो फॉर डार्क स्टोर्स, वहां इन्वेस्ट करो बट अपनी इन्वेंटरी और अपने पैसे मत ब्लॉक करो। इसीलिए यूनिकॉमर्स काम आता है, लिमिटेड इन्वेंटरी सबको बताता है जब बेचो कितना बेचो। So that's the solution. Now coming back to this point, I would 100% agree with both of them. Both of are learned speaker. But मुझे लगता है कि हर चीज बिकती है, जो चीज मार्केट में पिट भी चुकी होती है वो भी बिकती है। बेचने का कला, हुनर और जगह पता होना चाहिए, right? So I as an individual, unfortunately I don't have a brand, मैं अभी कुछ बेच नहीं रहा हूँ। बट अगर बेचता तो मेरी स्ट्रेटेजी होती है प्रीमियम प्रोडक्ट्स को मैं प्रीमियम मार्केट प्लेस में बेचता। जब वो एसक्यू पिट के कंपटीशन बना के उसको कॉपी करके अलग बेच रहा होता तो मैं उसी की मार्केट में जाके उसको डिफीट करता, उससे सस्ता बेचा ऑन मेबी मार्केट प्लेसेस लाइक मीशो और शॉपी और मेबी नॉन प्रीमियम। प्लस आपके पास रिप्लेनिशमेंट का भी ऑप्शन होता है, राइट? स्टॉक आउट करने का भी ऑप्शन होता है जहाँ पे आप बल्क डिस्काउंट दे देते हो। एंड देयर हैव बीन lot more people who are running offline show. तो offline तो आप हमेशा सस्ता बेच ही सकते हो, right? Because ना रिटर्न का झंझट है ना कुछ है। बताओ डिस्कार्ड करो और आगे बढ़ो या उन्हीं के गेम में उन्हीं को जाके compete करो। Plus best selling SKU is in a particular region. What is stopping you to sell that product globally? What is stopping you? हो सकता है इंडिया में वो चीज पिट चुकी हो but in other country maybe Southeast Asia or MENA region per se that is something new which can be appealing, वो लोगों को अच्छा लगता है, right? Giving an example, people from Gujarat use ज़्यादातर they wear fancy shirts, देखा ही होगा। People from North they go for pinstripes, plain या solids, whatever you say, right? But जब इनको गोवा जाना होता तो ये क्या पहनते हैं? वही printed fancy shirts जो डिजाइन पिट के लाके मतलब this is just a thought, thinking out of the box strategy. I don't have a foolproof answer to this. मल्टी ज्योग्राफी जाओ यार, कौन रोक रहा है? The world is a global village now. कहीं का कुछ भी बेचो। Giving an example, एक और प्राइसिंग की एक अच्छी स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ। There is a decent brand, footwear brand, Alberto Torresi. किसी ने नाम सुना होगा शायद। Online they are selling a very good classic example what they talked about. यार मैं एक जूता बनाता हूँ जो 2000 का बिकता है, राइट? डिमांड अच्छी आने लगी, मार्केट में भी जाने लगा, सभी लोग पहनने लगे तो उसकी प्रीमियमनेस और रिचनेस खत्म हो गई। उन्होंने डिमांड कंट्रोल करी, सप्लाई रिस्ट्रिक्ट किया। डिमांड कैसे कंट्रोल करी? पहले प्राइस बढ़ा दिया और सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो प्राइस इंक्रीज हो गई। प्राइस इंक्रीज होगा, वही जूता जो 2000 रुपए का मार्केट में बेचते थे वो 2800 का बिकने लगा। उसके बाद उसी जूते को 3200 का बेचा। अब आप वेट कर रहे हो मिंत्रा पे कि यार इसका प्राइस नीचे आए, मैं खरीदूं। प्राइस नीचे आ ही नहीं रहा है और आपके कार्ट में पड़ा है। अब कहीं ना कहीं वो आपको बॉदर कर रहा है कि यार ये मुझे खरीदना, मैं खरीद नहीं पा रहा। आखिर में या तो आप यू लेट इट गो या किसी आगे महंगा ही खरीद लोगे, यार खरीदो और आगे बढ़ो, लेट्स रैप दिस ऑफ। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। सो द पॉइंट इज कि इससे पहले कि कंपटीशन आपका कोई एसक्यू डिजाइन या कोई चीज कॉपी करे,
आप नए SKU लेके आओ, लॉन्च करो, आगे बढ़ो. That's the answer. Thank you. सर आपने जो बोला वो एग्जैक्टली कीशोर पियानी के बिजनेस मॉडल से मैच होता है. फ्यूचर ग्रुप, they started with Central Mall where the premium products are selling, Pantaloons and Central Mall. Earlier Pantaloons also belongs to the Future Group. If the product is not getting sold, it is moved to the brand factory, the tier 2. अगर ब्रांड फैक्ट्री में सेल नहीं हो रहा है तो इट विल यूज्ड टू गो टू द बिग बाजार्स. बिग बाजार में नहीं सेल हो ना तो लास्ट में लूट मार्ट में आता था, टेबल पे सब कपड़े खुले रखे हुए लूटो. तो दैट वाज एक्जेक्टली द सेम स्ट्रेटजी व्हाट ही हैज सेड एंड दैट्स हाउ द एंटायर मार्केट इज ऑलवेज. या एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेश्चंस? I guess the last question, and everyone is available throughout the day, so we can continue offline after this. You guys are amazing. If it will be benefit for us if you can share your last year revenue. I'll just take a quick question if that's okay. A lot of you work in relatively unconventional categories, right? Typically not sold online, or at least not sold online when you guys started. So how do you create that category? How do you develop? How do you make people realize कि ये तो चाहिए भाई, ये online भी ले सकते हैं? सर ये क्वेश्चन तो मैंने ही पूछ लिया था और सबने आंसर दे दिया. नहीं, but USP और need और category development थोड़ी सी अलग चीजें हो जाएंगी ना सर. If anyone wants to add anything on the top of that, what else we not told, we are already running out of time. तो कुछ अलग हो तो. So I know personally, I as an individual, unfortunately I don't have a brand. मैं अभी कुछ बेच नहीं रहा हूँ. But अगर बेचता तो मेरी स्ट्रेटेजी होती है. प्रीमियम प्रोडक्ट्स को मैं प्रीमियम मार्केट प्लेस में बेचता. जब वो SKU पिट के कंपटीशन बना के उसको कॉपी करके अलग बेच रहा होता तो मैं उसी की मार्केट में जाके उसको डिफीट करता. उससे सस्ता बेचा ऑन मेरी मार्केट प्लेसेस लाइक मीशो और शॉपी और मेरी नॉन प्रीमियम. प्लस आपके पास रिप्लेनिशमेंट का भी ऑप्शन होता है, राइट? स्टॉक आउट करने का भी ऑप्शन होता है जहाँ पे आप बल्क डिस्काउंट दे देते हो. एंड देयर हैव बीन lot more people who are running offline show. तो ऑफलाइन तो आप हमेशा सस्ता बेच ही सकते हो, राइट? बिकॉज ना रिटर्न का झंझट है ना कुछ है. बताओ, डिस्कार्ड करो और आगे बढ़ो, या उन्हीं के गेम में उन्हीं को जाके कम्पीट करो. प्लस बेस्ट सेलिंग SKU is in a particular region. What is stopping you to sell that product globally? What is stopping? हो सकता है इंडिया में वो चीज पिट चुकी है, but in other country, maybe Southeast Asia or MENA region per se, that is something new which can be appealing. वो लोगों को अच्छा लगता है, right? Giving an example, people from Gujarat use ज़्यादातर they wear fancy shirts. देखा ही होगा. People from North they go for pinstripes, plain या solids, whatever you say, right? But जब इनको गोवा जाना होता तो ये क्या पहनते हैं? वही प्रिंटेड फैंसी शर्ट जो डिजाइन पिट के लाके मतलब this is just a thought, thinking out of the box strategy. I don't have a foolproof answer to this. मल्टी ज्योग्राफी जाओ यार, कौन रोक रहा है? The world is a global village now. कहीं का कुछ भी बेचो. Giving an example, एक और प्राइसिंग की एक अच्छी स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ. There is a decent brand, footwear brand, Alberto Torresi. किसी ने नाम सुना होगा शायद. Online they are selling. A very good classic example what they talked about. यार मैं एक जूता बनाता हूँ जो 2000 का बिकता है, राइट? डिमांड अच्छी आने लगी, मार्केट में भी जाने लगा, सभी लोग पहनने लगे, तो उसकी प्रीमियमनेस और रिचनेस खत्म हो गई. उन्होंने डिमांड कंट्रोल करी, सप्लाई रिस्ट्रिक्ट किया. डिमांड कैसे कंट्रोल करी? पहले प्राइस बढ़ा दिया और सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो प्राइस इंक्रीज हो गया. प्राइस इंक्रीज हो गया, वही जूता जो 2000 रुपए का मार्केट में बेचते थे वो 2800 का बिकने लगा. उसके बाद उसी जूते को 3200 का बेचा. अब आप वेट कर रहे हो मिंत्रा पे कि यार इसका प्राइस नीचे आए, मैं खरीदूं. प्राइस नीचे आ ही नहीं रहा है और आपके कार्ट में पड़ा है. अब कहीं ना कहीं वो आपको बॉदर कर रहा है कि यार ये मुझे खरीदना, मैं खरीद नहीं पा रहा हूं. आखिर में या तो आप यू लेट इट गो या किसी आगे महंगा ही खरीद लोगे, यार खरीदो और आगे बढ़ो. लेट्स रैप दिस ऑफ. तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है. सो द पॉइंट इज कि
इससे पहले कि कंपटीशन आपका कोई एसक्यू डिजाइन या कोई चीज कॉपी करे, आप नए एसक्यू लेके आओ, लॉन्च करो, आगे बढ़ो. दैट्स द आंसर. थैंक यू. सर आपने जो बोला वो एग्जैक्टली पीसी और पियानी के बिजनेस मॉडल से मैच होता है. फ्यूचर ग्रुप, they started with Central Mall where the premium products are selling, Pantaloons and Central Mall. Earlier Pantaloons also belongs to the Future Group. If the product is not getting sold, it is moved to the brand factory, the tier 2. अगर ब्रांड फैक्ट्री में सेल नहीं हो रहा है तो इट वाज यूज्ड टू गो टू द बिग बाजार्स. बिग बाजार में नहीं सेल हो रहा तो लास्ट में लूट मार्ट में आता था, टेबल पे सब कपड़े खुले रखे हुए लूटो. So that was exactly the same strategy what he has said, and that's how the entire market is always. Right? Yeah. Anyone having any other questions? I guess the last question, and everyone is available throughout the day, so we can continue offline after this. You guys are amazing. If it will be benefit for us if you can share your last year revenue. I'll just take a quick question if that's okay. A lot of you work in relatively unconventional categories, right? Typically not sold online, or at least not sold online when you guys started. So how do you create that category? How do you develop? How do you make people realize कि ये तो चाहिए भाई, ये online भी ले सकते हैं? सर ये क्वेश्चन तो मैंने ही पूछ लिया था और सबने आंसर दे दिया. नहीं, but USP और need और category development थोड़ी सी अलग चीजें हो जाएंगी ना सर. If anyone wants to add anything on the top of that, what has been not told, we are already running out of time. तो कुछ अलग हो तो. So I believe personally we had something which was never thought about selling online or considered an online commodity to. But over the time मैंने ये realized किया कि at the core crux of it, it's just a mode of purchase. कि अगर कोई चीज़ offline बिक रही तो online मिल सकती है क्या, या तो rather than defining the category कि इसको online बेचना है, I would say कि ये product बिकेगा कि नहीं, ये हमारा main motive था. तो हमको बस ये define करना था कि we had to identify the right audience who are actually facing this pain point कि उनके पास ये product नहीं है, and then make them realize that we can offer them better choice जो उनके जुगाड़ से ज़्यादा efficiently काम कर सकता है. So that basically made the difference for us. Now we did multiple channels for it. सबसे बड़ा तो यही था कि लोग usually उल्टा आते हैं, they go with online marketing, performance marketing, SEO, and then come down to these. We initially started with affiliate setup first. तो हमारा सबसे बड़ा USP वही था कि हम अगर आपने प्रोडक्ट लिया, आपको अच्छा लगा, most of them are women, तो they have a good peer-to-peer connection also. तो आप उसमें अपने recommend कीजिए and we'll incentivize you with similar choices. Then we graduated to a different level जिसमें हम अपने doctors के साथ बात कर सकते हैं. तो doctors को we onboarded them with the same model. And then gradually जब brand की awareness एक certain state पे आ गई, then again I have to say that our telecast was one of the reason कि वो हमें जल्दी मिल गया, और otherwise it would have taken good 2 years to get there. But वो एक बार आने के बाद ना, then you just have to say a word to the audience कि हाँ यार ये चीज़ है, अब आप देख लो कहाँ से लेना चाहते हो, online, offline या किससे. That has been. Yeah, thank you everyone for being here, and it was nice to discuss so many things, and I hope everyone has learned something to manage with their brand and they can gain something out of this. Thank you. Wow, thank you so much you all to share your knowledge with us, and your insights will surely help us in your work, in our work. And now a request of Mohammed Mubashir sir, please join us on a stage to present the mementos. Well, once again, thank you for your wonderful speech and joining us today.